السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر ڈسکشن کے لیے گروپ ڈسکشن کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اس وقت ریاست میں کاسٹ سینسس کا جو سروے ہو رہا ہے اس کے لیے ڈسکشن کرنا ہے۔ اس بہت اہم ایک سروے ہونے جا رہا ہے ہماری ریاست میں، اور اس سے متعلق عوام میں کافی سوالات ہیں، ذہن میں کافی ڈاؤٹس ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، کیسے اس سروے کو مکمل کیا جائے، عوام کے ذہنوں کو کیسے صاف کیا جائے، اور فارم کیسے بھرا جائے۔ کچھ ایشوز ہمارے سامنے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم گورنمنٹ کے لیے کچھ سجیشنز بھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کمیونٹی بیس جو ہے کیا ہونا چاہیے، سوشل ایکٹیوسٹ بلاک لیول کے اوپر کیسے کام کریں، اس پر ہم آج اس گروپ ڈسکشن کے اندر بات کریں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو سروے ہونے جا رہا ہے مردم شماری کا، خاص طور سے کاسٹ سینسس جو ہونے جا رہا ہے، بہت اہم سروے ہے، اور اس کا ہمارے ریاست کی عوام پر بہت دور رس جو ہے وہ نتیجہ اس کا ظاہر ہوگا۔ تو عام طور پر ہمارے پاس یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور حصہ لیا جائے۔ جتنے ہمارے رہنما ہیں، دانشور ہیں، قانون کے اور سیاست کے ماہرین ہیں، اور دیگر اور ماہرین ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھرپور حصہ لیا جائے۔ ریاست میں آبادی کا جو تناسب ہے، خاص کر اقلیتوں کا جو آبادی کا تناسب ہے، وہ اسی سروے پر مستقبل میں منحصر رہے گا، اور اسی طریقے سے جو ریزرویشن کے فائدے ہیں، خاص طور سے بی سی ای کی کیٹیگری کے اندر یا دیگر اور کیٹیگریز میں آنے والے جو ریزرویشن کے فائدے ہیں، وہ بھی اسی سروے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس سیاسی نمائندگی کی بات کی جاتی ہے آبادی کے تناسب سے، وہ بھی اسی سروے سے جڑا ہوا ہے۔ تو ان موضوعات پر کہ ہم کیسے اس فارم کو، سروے کو مکمل کرنے کے لیے فارم کو کیسے بھریں گے، اور اس میں کیا قانونی پہلو ہیں، یہ ساری رہنمائی ہمیں آج اس گروپ ڈسکشن کے ذریعے سے ملے گی، جو ہمارے ساتھ یہاں پر مہمان موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر جناب مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، مفتی ہیں، اور ملی مسائل کے اندر بہت حصہ لیتے ہیں، ان سے بھی ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ جناب عارض محمد صاحب ہمارے درمیان آج موجود ہیں، جو سینٹر فار سوشل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اسٹڈیز کے ٹرسٹی ہیں اور اعداد و شمار کے ماہر ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ ہمارے درمیان جناب اطہر معین صاحب ہیں، جو ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں منصف کے، ان سے ہم اس سلسلے میں استفادہ کریں گے۔ اسی طریقے سے ایم اے شکیل صاحب ہمارے درمیان آج موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ اسی طریقے سے جناب سید ماجد شتاری صاحب ہیں ہمارے پاس، سیاسی تجزیہ کار، تجزیہ نگار، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ میرے ساتھ میرے ساتھی مفتی احسان صدیقی صاحب ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں ہمارے ساتھیوں اور مہمان حضرات کے سامنے کہ اس فارم کو ہم کیسے فل کریں گے۔ اس سلسلے میں عام آدمی کے ذہنوں کے اندر کافی سوالات ہیں۔ ایک بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے دانشوران اس سلسلے میں متوجہ کرا رہے ہیں کہ یہ بہت اہم سروے ہے اور اس میں سب حصہ لیں، علماء کرام، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے علماء کرام کو ریاست میں جمع کر کے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات کے اندر خصوصی مہم چلائی اور تمام ملی مسائل میں ملت کی رہنمائی کے لیے پیش ہیں، انہوں نے بھی اپنے علماء کرام کے ذریعے سے عوام الناس کو، ریاست کے اقلیتوں کو، مسلمانوں کو متوجہ کرایا ہے کہ ہر قسم کے شبہ سے باہر آ کر اس سروے کے اندر بھرپور حصہ لیا جائے، کیونکہ بعض گوشوں سے یہ شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کہیں یہ این آر سی وغیرہ سے جڑا ہوا کوئی اسٹیج اور مرحلہ تو نہیں ہے جس میں بعد میں کسی قسم کی دشواری سامنے آ سکتی ہے۔ تو علماء کرام نے تمام ماہرین کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کیے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایسے کسی شک کی اس سروے کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر جیسے دوسرے ہمارے ریاست کے طبقات ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طریقے سے اقلیتوں کے لیے بھی یہ سروے بہت فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں آبادی کا تناسب ظاہر ہوگا،
اور ریزرویشن کے فائدے حاصل ہوں گے اور سیاسی نمائندگی کے جو فائدے ہیں وہ بھی مستقبل میں حاصل ہوں گے۔ میں ہمارے مہمان جناب عارض محمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس فارم کو بھرنے کے سلسلے میں جو نمبر وار ترتیب ہے ہمارے سامنے، اس ترتیب کے مطابق جو ابتدا میں چند باتیں ہیں، ایک کچھ تو ایسے سوالات ہیں فارم کے اندر جو ہر عام آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نام کو بھرنا اور ہیڈ آف دی فیملی کو اس کے اندر درج کرنا، اور اسی طرح سے دوسرے جو سادے قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ البتہ اس کے اندر جو ہے ذات اور طبقے سے متعلق کون سی کیٹیگری کے اندر کون اپنا اندراج کرائے گا، اس سلسلے سے متعلق ہمارے سوالات ہیں۔ میں عارض صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ 5 اور 6 نمبر جو فارم کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے، جس کا تعلق مذہب سے بھی ہے اور ذات اور طبقے سے ہے، اس سلسلے سے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ 5 نمبر جو ہے وہ مذہب کے نام سے ایک کوشچن ہے، اور جو بھی مسلمان ہے تو وہ اپنا مذہب اسلام لکھے، مسلم مذہب اسلام لکھے، اور 6 نمبر میں کون سے ساماجی کیٹیگری سے آپ ہے، یہ کوشچن ہے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ BCE میں آتے ہیں، چند لوگ BCA میں آتے ہیں، اور خاص کر کے نور بادشاہ، دھنکی، دودھے کلا، یہ لوگ جو ہے یہ BCB میں آتے ہیں۔ تو یہ حساب سے وہ اپنا اپنا جو کیٹیگری ہے، سوشل کیٹیگری ہے، وہ لکھے، مانے مہتر کمیونٹی BCA میں اپنا نام درج کروائے، BCE بول کے لکھے، اور نور بادشاہ، دودھے کلا وغیرہ جو یہ لوگ جو ہے ان کے 5 یا 6 نام الگ الگ ہے، یہ لوگ BCB میں لکھے۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ کے جو بھی ریمیننگ ہے وہ سب BCE میں لکھے، اور اس کے بعد کالم نمبر 7 ہے، وہاں پہ اسپیسیفکلی آپ کا کاسٹ کا نام لکھنا پڑے گا۔ اگر آپ دودھے کلا ہے یا نور بادشاہ ہے تو نور بادشاہ لکھیں، اور BCE میں شیخ ہے تو شیخ لکھیں، اور سپیرے ہے تو سپیرے لکھے، سپیرے بھی BCE میں آتے ہیں، اور پتھر پھوڑو ہے تو پتھر پھوڑو بھی BCE میں آتے ہیں۔ مانے پہلے میں جو ڈی نوٹیفائڈ کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں وہ سب BCE میں آتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے 7 نمبر کالم میں اپنا کاسٹ کا نام لکھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ BCE میں مسلمس نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر یہ احساس ہے، اس بارے میں کیا آپ رہنمائی کرتے ہیں؟ وہی کہہ رہا تھا کہ اسلام الگ چیز ہے، مسلم الگ چیز ہے۔ مسلمانوں میں ذات پات ہے، اسلام کا جو اسکرپچر ہے، اسکرپچر مطلب قرآن اور حدیث وغیرہ جو بھی ہے، اس میں ذات پات ہے نہیں، تو اسی وجہ سے ہم ان دونوں میں فرق لینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں دستور کے حساب سے اپنی معلومات دینا پڑے گا، مذہب کے حساب سے نہیں۔ دستور کے حساب سے مسلمان جو ہے یہ کاسٹ کے نام سے بٹے ہوئے ہیں، مانے ایکچولی اس کو کہا جائے جب دستور پیدا ہوا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ کلاس کہا تھا، اس کے بعد منڈل کمیشن کے ججمنٹ میں انڈیا میں کلاس از اکول ٹو کاسٹ بتایا گیا، تو آٹومیٹیکلی مسلمانوں میں بھی کاسٹ آ گیا۔ تو اس وجہ سے مسلمان بھی اب اپنے برادری کا نام مینشن کریں، BCA اگر کوئی ہے تو اس کو مینشن کریں، یا مہتر ہے تو BCA میں مینشن کرے۔ نور بادشاہ جو ہے وہ نور بادشاہ، دودھے کلا جو بھی 5 نام ہیں ان کے، وہ لوگ BCB میں مینشن کرے۔ ریمیننگ جتنے بھی ہے وہ BCE میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کی بعد کی کالم امیڈیٹلی 7 نمبر کا کالم جو ہے وہاں پہ آپ اسپیسیفکلی آپ کوسے کمیونٹی کے، کوسے برادری کے ہے وہ نام لکھنا پڑے گا۔ یعنی BCE فار ایگزامپل اگر 6 میں لکھ رہے ہیں تو BCE کے کون سی کیٹیگری سے، سب کیٹیگری سے آپ بلانگ کرتے ہیں، وہ 7 نمبر کے تحت لکھنا پڑے گا۔ 8 نمبر میں وہ اس کا اسپیسیفک نام لکھنا پڑے گا، مانے اس کا دوسرا نام اگر کوئی ہے تو وہ لکھنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل سپیرے ہیں، سپیرے گارڈی بھی کرتے ہیں، گارڈی مطلب اردو میں کیا کرتے ہیں، کھیل تماشا، کرتب دکھانے والے، ہاں وہ کرتے ہیں، تو وہ اسپیسیفک نام ان کو وہاں پہ لکھنا پڑے گا۔ اور نٹ ایک کمیونٹی ہے، نٹ مطلب رسی پہ چلتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں،
पुतले वगैरह बनाते हैं, ये नत कम्युनिटी से है। सिनेमा, बहुत सारे हिंदी सिनेमा एक्ट्रेसेस जो है, मधुबाला जैसे लोग जो है, मुस्लिम है मधुबाला भी, वो नत कम्युनिटी से है। ओके। तो वो अपना नाम स्पेसिफिकली लिखे है यहाँ पे, मैं नत कम्युनिटी से हूँ, तो ऑटोमेटिकली बीसीई में रहता है। ठीक। सैयद पठान के लिए स्पेशल जीवो निकला है, 2019 में निकला है। अभी जो बीसीई का जो जीवो है वो 2015 में निकला है, उसके बाद उसको एक्सटेंड करते हुए 2019 में सैयद पठान माने बीसीई में जो बचे हुए कम्युनिटीज, माने 2015 में 15 के जीवो में जो भी बचे हुए कम्युनिटीज है उनको इंक्लूड करते हुए 2019 में और एक जीवो निकला है, तो वो लोग भी बीसीई कैटेगरी में आते हैं। ओके। यही सवाल था कि खान, पठान और सैयद के बारे में सोचते हैं कि शायद ये बीसीई में नहीं आएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीसीई में ये कैटेगरीज भी आती हैं, तो इनको लिखना चाहिए। बीसीई सैयद है तो सैयद लिखे, पठान है तो पठान लिखे, खान है तो खान लिखे। ये बहुत अहम बात है कि आम तौर पर मुस्लिम अक़लियत को बीसीई कैटेगरी में जो है अपना इंदराज करना चाहिए, इल्ला ये कि सिवाय इसके कि जो है वहाँ पर एक्सेप्शन हो कि बीसीए और बीसीबी के अंदर जो है वो किसी का वो अपना जिक्र करना चाहता हो। जैसे आपने कहा कि लद्दाफ हैं, नूरबाश हैं, उनको जो है वो बीसीबी के अंदर जो है जिक्र कर सकते हैं। जनाब अतहर मोइन साहब जो है मुनसिफ के अंदर इस सर्वे के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में ख़ास तौर से मुतवज्जे कराते रहे हैं। इस ज़ात और तबके से मुताल्लिक़ मज़ीद आप क्या इस सिलसिले में रहनुमाई करना चाहते हैं? इस सिलसिले में एक और गलतफहमी पाई जाती है कि अरब जो है, अरब इसमें शामिल नहीं है। अरबों में हबशी और याबा बरादरियां भी बीसीई में शामिल हैं। तो अरब हजरात जो खासकर यमन वगैरह से आए हैं, ये लोग ऐसे याबा ज़ैली ज़ात में ऐसे अपना इंदराज करा सकते हैं और ये बीसीई के फ़वाइद से इस्तेफादा कर सकते हैं। एक अहम सवाल ये है कि ये जो ट्राइबल एरियाज़ में जो है हमारे अक़लियतों के लोग रहते हैं, उनके बारे में ये एहसास है कि ये सिर्फ अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्राइबल्स जो है इनका उस कैटेगरी के अंदर शुमार नहीं होगा, यानी एसटी में ये नहीं आएंगे, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन कानून की रोह से 1970 से पहले जो उस एरिया के अंदर पैदा हुए हैं और उनके फिर जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो नस्ल है वहाँ पर जो जी रही है, वो एसटी कैटेगरी ही के अंदर वो आती है। इस बारे में क्या रहनुमाई है? दस्तूर में आर्टिकल 342 ये कह रहा है कि ट्राइबल नोटिफाइड ट्राइबल इलाके जो भी है इस मुल्क में, वहां पे अगर कोई पैदा हुआ तो उसके मजहब से कोई लेना देना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्राइबल बन जाएगा। मतलब अगर समझिए कि निर्मल ट्राइबल एरिया है, निर्मल आदिलाबाद के चंद इलाके और निजामाबाद के चंद इलाके तेलंगाना में ट्राइबल एरियाज है। ये ट्राइबल इलाकों में अगर जो भी पैदा होगा, जो भी मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई और मजहब का हो, जो भी वहां पे पैदा होगा, तो वो बाय डिफॉल्ट ट्राइबल है। ओके। तो इन लोगों को, ट्राइबलों को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन माने दस्तूर से जो भी सहूलतें मिलेंगी, ये इनको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, नुक्ता है, ख़ासतौर से वो लोग जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं। जैसे कि अभी इशू उठा था जैनूर का कि वहाँ के लोग किस कैटेगरी में आते हैं, तो उस एरिया में और जो भी ट्राइबल एरिया के अंदर रह रहे हैं वो उन अगर 1970 से पहले वहाँ पर किसी की पैदाइश एक मिनट जमीन के लिए ये जो चीज बोल रहे हैं, अगर ट्राइबल एरिया में पैदा भी हो जाए, चाहे वो 2024 में क्यों ना पैदा हो, वो ट्राइबल कहलाएगा। अलबत्ता जमीन की मिल्कियत है, 70 से पहले अगर आपके पास जमीन है तो आपका मालिकाना हुकूक वो महफूज रहेंगे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, यानी हम कोई नहीं लैंड से मुताल्लिक बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि उस एरिया के अंदर 1970 से पहले पैदा होने वाले बाय डिफॉल्ट कबायली होगा, चाहे वो आलाजात से हो या किसी भी मजहब से। बाय डिफॉल्ट वो 1970 से पहले वहां से जो है 2024 में भी अगर वो पैदा होता है कबायली इलाके में, तो वो कबायली ही कहलाएगा। 2024 में या आने वाले दिनों में पैदा होने वाला बच्चा भी कबायली ही कहलाएगा।
اچھا یہ لینڈ سے متعلق خاص بات ہے. ان کی ملکیت کا معاملہ ہے کہ ایک ایکٹ یہاں پہ لایا گیا تھا تلنگانہ میں کہ 1970 سے پہلے جن کے پاس یہ زمینات تھی وہ زمینات سے ان کی مالکانہ حقوق محفوظ رہے. تو یہ سروے سے متعلق تو یہ بات ہے کہ جو اس ایریا میں رہ رہا ہے وہ خود کو ایس ٹی لکھائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. ایس ٹی کے کیٹیگری کے اندر اس علاقے کے لوگ اپنے آپ کو لکھائیں گے. یہاں پہ قانونی مسئلہ ہے, شکیل بھائی وہ بتائیں گے. السلام علیکم. شکریہ مولانا صاحب, آپ لوگ ہم کو جو ہے موضوع کے اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے. ابھی یہ جو آرٹیکل 170 کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایکٹ کی, تو وہ جو ہے اس پہ وائڈ ہوگا کہ ہاں آرٹیکل 13 کے تحت میں جہاں پہ ایسا نہیں کر سکتے وہ لوگ کہ جو ہے لینڈ نہیں دینا ہے بلکہ نہیں ہو سکتا, وہ اس کو چیلنج کرنا پڑے گا. ٹھیک, شکریہ. آرٹیکل 342 کے تحت ٹرائبل علاقے میں جو پیدا ہوا ہے اس کے کوئی بھی رائٹس قانونی طور سے نکال نہیں سکتے, کیونکہ وہ دستور کا مسئلہ ہے. قانون جو ہے وہ دستور کے نیچے ہے. تو جیو 70 جو بھی بول رہے ہیں یا ایکٹ اٹ از انویلڈ. تو سروے کے اعتبار سے وہاں پر ایس ٹی لکھائیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. اب اگلے جو سوالات ہیں وہ فار ایگزامپل موبائل نمبر سے متعلق وغیرہ ہیں. البتہ یہاں پر جو ہے پوائنٹ 11 جو ہے وہ شادی سے متعلق ہے کہ وہ اس کو فل کریں, میرڈ ہیں یا کیا اسٹیٹس ہے ان کا. اور جو 13 پوائنٹ ہے وہ اسکول اور اسکولنگ سے متعلق ہے کہ کہاں پر تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے. یہ شادی کے سلسلے میں ایک اور وضاحت ہے کہ صرف اگر ہم لوگ اکثر سوال کرتے ہیں شادی شدہ ہے ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں, اس میں بیوہ مطلقہ رنڈوا بھی ہے کہ اگر کسی کی بیوی مر گئی تو وہ بھی ایسو لکھنا نہ ہوگا. اوکے, یہ بہت اہم وضاحت ہے کہ وہ بھی جو ہے میرڈ کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس سلسلے سے متعلق ایجوکیشن سے متعلق جو سوالات آ رہے ہیں جناب ایم اے شکیل صاحب اس سلسلے میں کچھ فرما رہے ہیں. دیکھیے آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں جی, جو ہائیسٹ سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ جو ہے بتانا پڑے گا اس کے اندر, اور میڈیم آف انسٹرکشن بھی ہے اس کے اندر, جس میڈیم سے آپ جو ہے پڑھے ہیں لاسٹ وہ جو ہے آپ کو بتانا ہے. آپ جتنا ایجوکیشن آپ کرے ہیں وہ پورا ایجوکیشن آپ وہاں پہ لکھوائیے. 13 میں اسکول جہاں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یہ سوال ہے, تو بہت سے لوگ ہمارے پاس مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کا بھی دیگر میں شمار ہے. وہ جب شمار کنندہ آئے گا وہ کوڈس میں 00 یوز کرے گا. اگر مدرسے سے ہیں تو دیگر کیس میں آتا ہے. اوکے, اس میں کیٹیگرائز کرے ہوئے وہ لوگ کہ سرکاری اسکول ہے, امدادی اسکول ہے, خانگی اسکول ہے یا گروکل اور ٹیم ادرس میں سے نہیں, الگ الگ کیٹیگری. ادرس میں مدرسہ آ جائے گا. یعنی وہاں پر مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی اپنا اندراج کرنے کا خانہ موجود ہے, وہ اپنا ذکر کر سکتے ہیں. تو 14 جو ہے وہ تعلیمی قابلیت کیا ہے, کہاں تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, جی اس کا ذکر ہے. تو اس سلسلے سے متعلق کیا رہنمائی ہے فارم بھرنے والوں کے لیے؟ آپ کے پاس جو بھی لاسٹ ایجوکیشن ہے آپ مکمل کرے ہیں یا پھر جو ایجوکیشن آپ پرسیو کر رہے ہیں اس ایجوکیشن کے بارے میں آپ اس میں لکھوائیے. کیونکہ اگر گریجویٹ ہے, پوسٹ گریجویٹ ہے, تو اب پوسٹ گریجویشن چل رہا ہے تو کنٹینیوشن میں آپ اس کو لکھا سکتے ہیں. ایم کام کنٹینیوشن ہے, اس میں ہر چیز کا دے دیا گیا. آپ اگر جیسا انجینئرنگ کر رہے ہیں تو اس کا ایک الگ کوڈ ہے, وہ لوگ لکھ لیں گے. آپ جو پیشہ یعنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بتائیے. اگر انجینئرنگ کرے تو انجینئرنگ بتائیے. ایون سی اے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, پی ایچ ڈی, یہ پورے تمام ان کے پاس ہے. 23-24 تک ایسے ان کے پاس زمرے بندی ہے. تو آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ آخری آپ کی یعنی اعلیٰ تعلیم وہ بتا سکتے ہیں. اور یہ ہر فرد کے خاندان کو الگ الگ دینا ہے. اگر آپ کے پاس مذہبی علم ہے, عالم فاضل وغیرہ ہے, تو وہ بھی ہم بتا سکتے ہیں, اس کا بھی کوڈ ہے. بالکل. بہت چند مسلم لوگ سانسکرت بھی پڑھ رہے ہیں, سانسکرت میں بھی ان کا یہ ہے, تو وہ اپنے سانسکرت کا جو بھی سرٹیفکیٹ ہے وہ حساب سے وہ بتا سکتے ہیں. یعنی جو بھی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اس کو وہ ذکر کر سکتے ہیں وہاں پر, اور وہ ضرور ذکر کریں. ٹھیک ہے. اگلا ایک جو سوال ہے 15 نمبر, وہ ایجوکیشن کے میڈیم کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس کا میڈیم ذکر کریں.
تو اس کی وجہ کیا ہے, یہ سوال کی وجہ کیا ہے کہ اس میڈیم کو کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہائر ایجوکیشن میں بہت کم جگہ پہ مشکل سے آپ کو کہیں بھی جو ہے اردو میڈیم یا دوسرا اور میڈیم ملے گا, لیکن جتنا بھی ہائر ایجوکیشن ہے پورا انگلش میڈیم میں چل رہا ہے. تو بہت سارے کم کورسز ہیں جس میں جو ہے آپ کو تیلگو یا پھر اردو میڈیم تو صرف اپنے ایک مولانا آزاد میں ایک مولانا آزاد کی مثال ہے ہمارے سامنے, 2-4 سبجیکٹس ہیں اس میں, اس سے زیادہ بھی نہیں ہے. تو تقریباً جو ہے ایجوکیشن آپ کا جو ہے اردو سے شفٹ ہو کر جو ہے انگلش میڈیم میں آ چکا ہے. تو وہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں اس کو کہ وہاں پہ ہائر ایجوکیشن پورا. تو یہ 15 نمبر بہت اہم ہے جس کے بارے میں جو ہے فارم بھرنے والوں کو احساس ہونا چاہیے. ہم آخر میں بھی اس بارے میں بات کریں گے کہ جو کچھ کمیونٹی کے لیڈرز ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, وہ فارم بھرنے والوں کے ساتھ وہاں موجود رہیں تاکہ ان تمام کالموں کے اندر صحیح اندراج ہو سکے. اس میں میں بولنا بھی چاہوں گا کہ جو ہے جب انیومریٹر آتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو صحیح ریسیو کریے, اور اس سے پہلے آپ اپنا یہ فارم جو ہم بتا رہے ہیں بات کر رہے ہیں, ویسے فارم اگر آپ کو حاصل ہوتا ہے کوئی بھی ذریعے سے تو اس کا جو ہے انفارمیشن ایک بار آپ بازو نوٹ کر کے رکھ لیجیے جتنا بھی ہے, تاکہ وہ جو ہے آرام سے بھرا جائے اور کم ٹائم میں بھرا جائے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سہولت ہو جائے اس میں. اور یہ بھی میں بول رہا ہوں جہاں پہ لینگویج کا پرابلم آ رہا ہے کسی کو, تو وہاں پہ لوکلی جو ہے کوئی آدمی جو ہے اس سے انیومریٹر کی لینگویج سے جو ہے معلومات ہے اس کو, تو دونوں مل کر جو ہے اس کو جو فارم کے اندر زبان ہے تیلگو, انگلش یا جو بھی زبان ہے اس زبان کو جاننے والا وہاں پر موجود رہے تاکہ عام آدمی کی رہنمائی کر سکے. تاکہ جو ہے اگر انیومریٹر آ رہا ہے جس کو جو ہے اردو نہیں آ رہی ہے برابر, تو ہمارے پاس سے کوئی 1-2 آدمی جو ہے وہاں رہ کر وہ لکھانے میں مدد کرے اس کی. آپ نے ابھی یہ کہا تھا کہ فارم میں جتنے افراد خاندان ہیں ان تمام کے نام کے آگے یہ تفصیلات درج ہونا ہے کہ کس کی کیا تعلیم ہے. جی وہ صحیح ہوگا. یعنی یہ کوئی جو ہے اگر ایک خاندان میں 5 لوگ ہیں تو 5 اور 75 سوالات یعنی ہر ایک سے پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں کیونکہ ہر ایک کی تعلیمی قابلیت الگ ہوگی, ہر ایک کی ذرائع الگ ہوگی, ہر ایک کی جو مصروفیت الگ ہوگی, یعنی پیشہ وغیرہ الگ ہوگا. ایک بات اور یہ ہے کہ یہ جو رہنمائی کرنے والے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انیومریٹر کو جو بکلیٹ دی جا رہی ہے وہ بکلیٹ اور اس میں جو کوڈز دیے گئے اس سلسلے میں اگر کوئی وہ لینا چاہتے تو ایسا انتظام ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ وہ رہنمائی کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ شمار کنندہ اندراج صحیح کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کی مادری زبان اردو ہے اور اس کا ان کے پاس کوڈ ہے, اس کا کوڈ جو آتا ہے اردو کے لیے 3 اگر 3 کے بجائے 2 لکھ دیا تو 1 لکھ دیا تو تیلگو ہو جائے گی. یعنی اس بات کا خاص خیال رکھیں جو رہنمائی کر رہے ہیں کہ وہ کوڈ بھی صحیح لکھ رہے ہیں یا نہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ جو خانے اور کالمز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ڈیٹیل ورڈنگ وہاں پر نہیں ہے, بلکہ انیومریٹر صرف کوڈ لکھے گا, تو کوڈنگ کے اندر اور کوڈ لکھنے کے اندر کوئی غلطی نہ ہو. ہم ممکن ہوا تو سوشل میڈیا پر یہ چیز ڈال دیں گے کہ کون سے کوڈ کے ساتھ کیا آتا ہے. بہت اچھا, بہت ضروری ہے وہ. ایک چیز جو ہم اب تک فارم کے بارے میں ذکر کیے ہیں, ایک تو بیسک انفارمیشن ہے کسی بھی شخص کے بارے میں, پھر اس کے ذات اور طبقے کے بارے میں. اب یہ ایجوکیشن کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اگلا جو کوشچن ہے وہ 20 سے 27 تک کسی کی ملازمت اور پیشے سے متعلق ہے کہ 16 ہے فار ایگزامپل کہ اب لوگ ان کی ملازمت اور ان کا روزگار وہ کس نوعیت کا ہے, تو اس سلسلے میں جو ہے کیا اس کے اندر ہونا چاہیے, 16 کے اندر کیا لکھا جائے, اب کیا کام کرتے ہیں, موجودہ آپ کیا کام کرتے ہیں اس کو مینشن کریں گے وہ وہاں پر. ہاں, اگر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں انآرگنائز ابھی سیکٹر لیبر ہے ہمارا, تو جس میں ہاکر آتے ہیں اور جتنے بھی جو ہے کام کرتے ہیں پینٹر ڈینٹر وغیرہ یہ لوگ, تو اپنا جو ہے بیٹا برابر اس کو لکھا ہے. اور آپ کوئی دوسرا مطلب سیلف امپلائمنٹ مت لکھا ہے. سیلف امپلائمنٹ میں آپ کیا کرتے ہیں, ہاں یہ بہت اہم ہے کہ سیلف امپلائمنٹ کافی نہیں ہے بلکہ اس کو اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ وہ کرتے کیا ہیں اس کے اندر. کیونکہ آپ کوئی بھی کالم کو ایسا ادھورا مت چھوڑیے یا پھر مت چھوڑیے اس کو, کیونکہ آگے چل کے پھر آگے دوسرے کالم میں اس کا جو ہے کنیکٹیوٹی آئیں گی. تو
जहाँ पे वो आपको जैसा इन्यूमरेटर डाल रहा है कि कोड्स डाल रहा है, वो कोड जो है कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएंगे यहाँ पे और आगे चलने में। तो जितना आपका इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली लिखाइए उसको, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, आगे चल के जो है ठीक है। कनेक्टिंग हो जाएंगे उसको। ठीक है, जनाब माजिद शितारी साहब। अगला जो क्वेश्चन है वो 19 से मुताल्लिक है कि इसमें जो लिखा गया है कि कोई बिजनेस कर रहा हो, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो उसका टर्नओवर क्या है। इसके अंदर जो है उसका जो सालाना आमदनी हो रही है, मजमूई आमदनी जो है उसकी आमदनी होगी, नफा नहीं। अच्छा, ये फर्क है, टर्नओवर है, टर्नओवर है तो वो टर्नओवर लिखा जाए और वही टर्नओवर लिखा जाए जो आपकी कंपनी या आपकी तरफ से इनकम टैक्स या दीगर महकमे में पेश किए जाते हैं। यहाँ इस बात का खास ख्याल रखें, जो लोग टैक्स अदा करते हैं वो लोग वही आमदनी दिखाएं जो यहाँ टैक्स में के दस्तावेजात में पेश करते हैं। यहाँ पे कम ज्यादती करने की कोशिश ना करें। एक तो बहुत मतलब जिसकी एक अच्छी कमाई और आमदनी है उसके लिए टर्नओवर का जिक्र है, लेकिन 20 जो है वो यौमिया मजदूरी पर काम करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अपना यौमिया मजदूरी का रिकॉर्ड जो भी है वो दिखाना है। इसमें एक और चीज है, आगे चलकर एक ताला फिर ये आएगा कि आप जो पेशे से वाबस्ता है क्या वो आपकी जात का पेशा है। तो वहाँ पे क्वेश्चन 21 में यही बात है जी। अगर कोई पेशे ऐसे भी हैं कि वालिद जो करे बेटा भी कर रहा है दादा भी कर रहा, तो वहाँ पे वो जात के पेशे में नहीं, जात के पेशे में अभी वो फिलहाल काम कर रहे हैं या उन्होंने किसी और जगह पर काम शुरू कर दिया। तो ठीक है, जात का पेशा हो जाता है उनकी बरादरी का, तो वो चीज का वहाँ पे इंदराज करवा। एक क्वेश्चन 23 बहुत अहम है जो 23rd पॉइंट है, सॉरी आप बताइए। मैं ये 21 से पहले ये दो चीजें छूट गए हैं। हाँ, 11 नंबर पे कह रहा है आपकी मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति। देखिए मुसलमानों को लेके थोड़ा सा गलतफहमी है कि बहुत सारे ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या मुसलमानों के लिए गलतफहमी ये है कि ये लोग बहुत सारा शादियाँ वगैरह करते हैं। तो इस चीज को लेकर जब आप 11 नंबर को लेकर जब आप आंसर करते हैं, छुपाने की कोई जरूरत है। आप एक शादी कर लिए या दो बीवियां है, 3 बीवियां है, इट्स नॉट एन इश्यू। आप खुल के बताइए आप शादी किए हैं, वो लीगल है, इसमें छुपाने की कोई बात है। ठीक है। दूसरी बात जो है 16 नंबर पे क्या काम कर रहे हैं, अभी आप क्या काम कर रहे हैं। तो कन्वेंशनली माने जो हमारे जानकारी में जो काम जो है उससे ज्यादा अलग अलग तौर के काम आज आ गए हैं। तो अभी मैं माजिद भाई की जिक्र कर रहा था, ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनर है, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, कई अमेरिका से डिक्टेशन होता है वो यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो ऐसे नए नए तरीके के काम है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के सिर्फ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी काम। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि क्या कोडिंग के अंदर इसको सामने रखा गया है, वहाँ पे कोडिंग में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो उसको कैसे लिखा वो जाएगा। लोग क्या कर लेंगे वो उनका काम है, हमारा नहीं है। नहीं, एन्यूमरेटर आएगा, आप कहेंगे कि भाई डाटा में जो है इकट्ठा करता हूँ, अदर में लिखेगा, वही गाइडेंस होना चाहिए ना पब्लिक को। अदर में लिखेगा, अदर में स्पेसिफाई भी करेगा, स्पेसिफाई भी करेगा। डेटा इकट्ठा कर रहा है। ठीक है। कोई लोग चंद लोग ऐसे हैं कि वो डेटा इकट्ठा करने का काम अलग है, डेटा इकट्ठा करके बेचने का काम अलग है, डेटा ट्रेडिंग का काम अलग है। ओके, ठीक है। नए नए चीजें हैं, तो जो कर रहे हैं उसको मेंशन करें। करप्शन के नए चीज। एक अहम सवाल है नंबर 23 का कि किसी पेशे या तबके से जुड़ी हुई बाज़ औक़ात ऐसे पेशे से जुड़े रहते हैं जिसमें कोई बीमारी आ जाती है उस काम की वजह से, तो उसको यहाँ पर मेंशन करने का जिक्र है। तो आम आदमी को उस बारे में अंदाज़ा होना चाहिए ताकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए कोई रिलीफ की कोई शक्ल हो, कोई स्कीम हो, तो उससे वो फ़ायदा उठा सके। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं जिसको जो है मेंशन किया जाए खास तौर से। इसमें बहुत से पेशे हैं जिसमें बिल्डर है, वहाँ पे ये करते हैं तो उनको यह था। दूसरी बात है
और ये मसाले वगैरह कूटने का जो काम होता है, इन्हें गिरनी जो चलाते हैं, जी। आटा वगैरह जो पीसने वाले हैं, जी हाँ। उन लोगों का भी इसमें आता है। इससे तनफ्फुस की बीमारियां पैदा होती हैं। तो ऐसे बहुत से और है, मैं फिलहाल मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन इन पेशों में ऐसे दूसरे भी आते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस है, इनको भी नुकसान होते हैं। तो जी, ड्राइवर्स के लिए रीढ़ की हड्डी का मसला पैदा होता है। तो ऐसे बहुत से आते हैं, वो लिखाते तो शायद मुमकिन है, हम जो समझते हैं कि इसके फायदे नहीं है, बात चीजों के इसको लिखाना क्या जरूरी है, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब ये बेनिफिट्स उठाए जाते हैं, तो जब हुकूमत ये डेटा का इस्तेमाल करती है, तो उनको अंदाजा होता है कि कौन से लोग इससे है, तो कौन सी बीमारियां भी इनके साथ लग कर आ रही हैं। आरिस भी कुछ जात को लेके, जात को लेके जो पेशे में है, वो पेशे से आपको क्या बीमारियां हो रही है, ये क्वेश्चन है 23 में। तो BCB में जो लोग हैं, जैसे कि नूर बादशाह लदाफ जो लोग हैं, इनका जाती पेशा है कि रुई धुनकना। अगर रुई धुनकते हैं तो इनको टीबी आता है। और BCA में मेहतर है, ये लोग आजकल ड्रेनेज का काम करते हैं, सेवरेज सीवरेज का काम करते हैं, सीवेज में उतरते हैं और वो गंदगी साफ करते हैं वगैरह वगैरह। इनको हर किस्म की बीमारी आ सकती है। और गवर्नमेंट ये कह रही है टीबी पूरे तरह से खत्म हो गई इंडिया में, लेकिन ये सीवरेज में काम करने वाले, रुई धुनकने वाले और गिरनी माने आटा बनाने वाले, गिरनी में काम करने वाले, इन सब लोगों को टीबी आती है। और उसके बाद रेडियोलॉजी रिलेटेड काम करने वाले लैब टेक्नीशियंस है। लैब टेक्नीशियंस हर किस्म के बीमारी के लिए वो लोग प्रोन है, उनको कोई भी बीमारी आ सकती है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के नीचे क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। पर कभी फरामोशी से हाथ इधर उधर लग जाए तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दैट दे विल गेट इट। ओके। कंप्यूटर पे काम करने वालों को भी बीमारियां आती है, उनके हाथ के जो है वो खराब होते हैं, मजल्स नहीं माने ये क्या बोलते हैं इसको, एंकल्स, जॉइंट्स वगैरह खराब हो जाते हैं। और उनको हमेशा ये रहता है कि कुर्सी में बैठ के रहते हैं, काम नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रहती है, वो ऑलमोस्ट 90% डायबिटिक होता है। ओके। तो ऐसे इन चीजों को जिक्र किया जाए। ऐसे बहुत सारे पेशे के वजह से बीमारियां जो है वो अलग अलग तरीके की बीमारियां भी जो मैंने जिक्र किया, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो मैंने जिक्र नहीं किया, वो सब हो सकते हैं। तो वो बताए कि जो भी एन्यूमरेटर आएगा उसको ये बताए कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। और इंडिया जो है ऑलमोस्ट डायबिटिक कैपिटल है। 40 से ज्यादा उम्र के जो भी लोग हैं, ये बाय डिफॉल्ट इनको डायबिटीज रहेगा, और इंसोम्निया भी रहेगा, माने नींद नहीं आना ये भी रहेगा। बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातें लग रही हैं, लेकिन इनकी अपनी अहमियत है, इसलिए इन तमाम कॉलम्स को जो है वो एहतमाम के साथ उसको फिल किया जाए। अगला जो हमारा क्वेश्चन के अंदर नंबर्स हैं 26 से लेके 35 तक, ये ज़मीन के जो ओनर्स हैं, ख़ास तौर से एग्रीकल्चर जो लैंड है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं कि क्या इनके पास ज़मीन है, और धरानी पासबुक का नंबर क्या है, इसमें से कौन सी ज़मीन पट्टा की है, कौन सी असाइन है, कौन सी ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट राइट से मुताल्लिक़ है, तरी, मेटा, पड़ाव क्या है, और यहाँ पानी का क्या इंतज़ाम है। इस सिलसिले से मुताल्लिक़ ख़ास तौर से किन बातों को सामने रखना चाहिए। एक बात 25 छूट गया है, और 25 में बहुत सारे फायदे हैं। हर कोई 18 साल की उम्र के ज्यादा उम्र के लोग जो भी है, हर कोई अपना अपना बैंक में अकाउंट खोले, क्योंकि गवर्नमेंट जो है 1 से 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट बैंक खाते में बाय डिफॉल्ट जमा करने का उनको बाय डिफॉल्ट ये आरबीआई के नाम से, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नाम भी है। तो गवर्नमेंट के फाइनेंस के रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसको अवेल करना है तो आपको बैंक खाता होना जरूरी है। तो इसीलिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आप छोड़ना मत। बैंक खाता अगर आपके पास नहीं है तो नहीं है लिख दीजिए, पर तुरंत ये कीजिए कि आप खोले बैंक खाता। ओके।
यानी बैंक अकाउंट खोलें भी और उसको फिर कोशिश करें कि इसके अंदर जो है वो इंदराज हो। ओके, आप फरमा रहे हैं जमीन से मुतालिक जो कानून आ रहे हैं ये ज्यादातर देही इलाकों में रहने वाले, लेकिन एक खास बात का ख्याल रखें, मुतवल्ली हजरात वहां पे जमीन की नौयत की जगह औकाफ लिखा है, औकाफ वक्फ जमीन लिखाएं, जरूर, ये नहीं लिखाए जा रहे और इसमें इसका जिक्र भी नहीं है। जब आप ये लिखाएंगे ही तो आपकी वो औकाफी जमीन जो है अगर रिवेन्यू में है तो आपको कहीं ना कहीं होगा कि आपने जब ये क्यों नहीं बताया कि आपके तहत आपकी तवलियत में इतनी एकड़ जमीन थी। तो ये ओनरशिप से हटकर और एक चीज कह रहे हैं आप कि तवलियत का भी उसके अंदर जिक्र आ जाए। तो इसमें बाकी की जमीनात है, इसमें तो जाहिर बात है वहां पर इसके लिए कोई कोडिंग नहीं होगी, तो उसको अगर हमारे पास 15,000 मुतवल्ली है ये लिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हुकूमत को भी निशानदेही होगी कि इतनी जमीनें औकाफ की हैं और इतने लोग इसके निगरान मुतवल्ली सज्जादा नशीन है। इसकी कानूनी हैसियत बाद में पता चलेगा कि ये चीज़ों को डेटा जब इस्तेमाल होता है तब ये होगा, आपको नहीं फौरी तौर पर नहीं आएगी बात सामने, लेकिन हुकूमत की सतह पे ये बात पहुंच जाएगी। लेकिन ये 26 जो है ये क्या आप जमीन के मालिक हैं का जिक्र है, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये मालिक का नहीं है बल्कि तवलियत में निगरान में कस्टोडियन है, तो कस्टोडियन की यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो आप जब औकाफ लिखते हो तो इन्यूमरेटर वो चीज है जो फौरी आप औकाफ लिखाते साथ ही शाम में उसके अपने सुपरवाइजर को ये बात बताएगा कि साहब आज मेरे पास ये बात आई है, इसको मैं क्या करूं। तो ये रिव्यू होने वाला है रोजाना की असास पे सरकारी सतह पर। तो ये अपने सुपरवाइजर से कलेक्टर से सेक्रेटरी से लेवल पे ये बात पहुंचेगी और उस वक्त इसका इंतराज जरूर होगा। M.A. शकील साहब इस मामले में जी ये जो है आपका ऑक्यूपेशन में भी है, क्योंकि वो जगह जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए वक्फ जो जगह है, या अब जो नया वक्फ अमेंडमेंट बिल है पुराना वक्फ के साथ में कनेक्टेड है, तो ये आप इसकी तशरीह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप नहीं लिखाएंगे कर जो भी आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे वो कल जाके आपको कॉन्ट्रडिक्ट होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में या कहीं भी आपको नहीं आएगा, तो फिर कल आपका चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो लिखाने के जो आपको रिकॉर्ड्स है वो लिखिए, और जहाँ तक है आपको आपके पास में उसके जो है डॉक्यूमेंट्स है या सर्टिफिकेट्स है तैयार रखिए। पूछते नहीं हो लोग, अगर पूछे तो आप बताने के लिए ज़रूरी हो जाता हूँ। ओके, पॉइंट 36 और 37 जो है वो रिजर्वेशन से क्या बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं एजुकेशन और जॉब में, उससे रिलेटेड है। हाँ, इसका इंदाज जरूर करवाएं। अगर आप PCE के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको दाखिला मिला है तो तालीम में आपको ये फायदा है, उसके बाद का कॉलम फिर मुलाजिमत का है। अगर BCE की वजह से आपको सरकारी मुलाजिमत मिली है तो ये उसका भी इंतराज करे, या आपके BCE होने की बात को मुसद्दिका बना देता है। ओके, ये जो 38 नंबर है इसमें गवर्नमेंट से जो स्कीम का फायदा उठा रहे हैं खासतौर से पिछले 5 साल से मुताल्लिक। हाँ, अगर स्कीम से फायदा मैंने समझता हूँ कि मुसलमानों को ये कॉलम में पूरे तेलंगाना के मुसलमान सिफर लिखा पाएंगे कि पिछले 5 सालों में ऐसा कोई स्कीम से फायदा ही नहीं हुआ। ये बहुत अहम बात है कि जो अक़लियतों के लिए हुआ था सिर्फ वो ड्राइवर्स को कार्स दिए गए थे, लेकिन खर्चात वगैरह नहीं दिए गए। इसके लिए कैसे हम जो है फिर इस इशू को रेस करें? नहीं हुआ, फायदा नहीं उठाए, लिखाइए नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ नहीं बल्कि आ जाएगा, लेकिन ये नहीं है जो पूरा होगा कि मुसलमान किसी भी सरकारी स्कीम से फायदा नहीं उठाए, ये बात आएगी और ये बात का इंदराज होना जरूरी है कि इसको नजरअंदाज ना करे, और ये इस बात को भी यकीनी बनाए कि शुमार कुनिंदा इसको नजरअंदाज ना करे। एक और मैं यहाँ पे फिर याद दिला देता हूँ, इस खासकर शुमार कुनिंदों को पेंसिल इस्तेमाल करने मत दीजिएगा। मुमकिन है कि आपके पास आपके जवाब आप जो बोल रहे हो उसी मुनासिबत से इंदराज करे, घर जाकर उसको बदल दे, तो पेन से ही इस्तेमाल करने दीजिए। ये बहुत अहम बात रहनुमाई कर रहे हैं अतर मोइन साहब के जो एन्यूमरेटर्स आए वो पेंसिल से अगर फॉर्म को भर रहे हैं तो उसको बिल्कुल अलाउ ना किया जाए, बल्कि वो पेन से ही उसको जो है फिल करेंगे, और इसके ऊपर बहुत खास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में बहुत गलतियां करते हैं एन्यूमरेटर्स, वो तो हम इशू पे बात करेंगे। अभी हम एक इशू इसके अंदर 38 ही में ये है कि
یعنی جو SC ST BC جو الگ الگ ذات ہیں, BCE بھی اس کے اندر ہیں, ان کے سرٹیفکیٹ کا ایشو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سرٹیفکیٹس نہیں مل رہے ہیں. ہاں وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ میسیوا سے مل جاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی نہیں مل رہے ہیں. اگر EBC کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن EBC بہت کم دے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بند ہے اس وقت. اگر آپ کے پاس ہے اگر کسی طریقے سے تعلیم کے وقت یا داخلے کے وقت لیے بچوں کے, تو جو بچے کا لیے اس جگہ پہ وہاں پہ لکھا دیجیے, آپ خود کا ہے تو لکھا دیجیے گا. اگر نہیں ہے تو آپ BCE میں ہی رہیں گے لیکن آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, یہ بات وہ ریکارڈ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے عارف صاحب. دو چیزیں ہیں, یہ کوسچن میں لکھا گیا ہے 38 میں SC ST BC EWS. اوکے. مسلمان جو ہے وہ ST میں آتے ہیں, BC میں بھی آتے ہیں, EWS بول کے کوئی کیٹیگری ہے نہیں, وہ EBC ہونا چاہیے تھا, اکنامکلی بیکورڈ کاسٹ ہونا چاہیے تھا. وہ انیومریٹر سے EWS اکنامکلی ویکر سیکشن بول کے لیے, وہ اکنامکلی ویکر سیکشن بول کے ایسا کوئی دستور کے حساب سے نہیں ہے, وہ EBC ہونا چاہیے تھا, اکنامکلی بیکورڈ کلاسز. نہیں, یہ جو ہے EWS کے بارے میں کہ جس کی آمدنی 8 لاکھ روپے سے کم ہو وہ اس کیٹیگری کے تحت آتا ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے EBC ہے. EBC اور یہ صرف سینٹرل گورنمنٹ کے لیے ہے. ہاں, اسٹیٹ گورنمنٹ کے پیرامیٹرز الگ ہیں. اسٹیٹ گورنمنٹ میں 5 لاکھ ہے. یہ جو کالم ہے 38 کا, اس میں سرٹیفکیٹ کا بہت جو ہے اہم کردار ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ ضرور ذکر کریں کہ انہیں یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا. وہ کیٹیگری سے بلانگ تو کرتے ہیں کیونکہ پہلے آ چکا ہے یہ کہ اس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے نہیں تو وہ اسکیموں سے صحیح فائدہ اٹھا نہیں سکتے, تو اس کو ضرور ذکر کیا جائے. اس کے بعد میں جو ہے یعنی یہ ملازمت اور پیشہ کے بعد میں ہماری کمیونٹی سے یا اسٹیٹ میں ادر کمیونٹی سے بھی جن لوگوں کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور وہ جو ہے پولیٹیکل فیلڈ کے اندر جو کام کرتے ہیں, چاہے وہ وارڈ میں کام کر رہے ہوں, پنچایت میں کام کر رہے ہوں, یا اسمبلی حلقے کے اندر MLA بن رہے ہیں, MP بن رہے ہیں, MLC ہیں, تو وہ اپنے ریکارڈ کو اس میں ضرور اندراج اس کا کرائیں, پنچایت ممبر سے لے کر رکن پارلیمنٹ تک. بالکل. اور اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے تھے اور اب نہیں ہے تو اس کو بھی مینشن کرنا ہے کہ پریویس جو ہے پیریڈ کے اندر یہ کبھی تھے اور اب نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے کور ہونا ہے. اس سلسلے میں 340 کے تحت میں, آرٹیکل 340 کے تحت میں ہم کو بھی جو ہے BCE میں جو ہے جو BC کے جو ریزرویشنز ہے, پولیٹیکل ریزرویشنز ہے, وہ ہم کو ملنا چاہیے. تو اسی وجہ سے ہمارے کو جو ہے BCE میں جو ہے اپنے آپ کو لکھانا, درج کرنا بہت ضروری ہے, یہ کرنا ہے کیونکہ پولیٹیکل ریزرویشن میں ہمارا بھی جو ہے رول آتا ہے, اس کے اندر حصہ بنتا ہے, اس کے اندر آبادی کے تناسب کے لحاظ سے. بالکل صحیح. لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ 0.6 سے ہے, وہ بالکل شروع میں. ہاں اب اس میں بھی یہاں پہ بھی جو ہے اچھا یہاں بھی اس کو ذکر کیا جائے گا. تو اس میں جو ہے یہ ہے کہ آرٹیکل 340 کے تحت میں آپ انٹائٹل ہے اگر BC ہے تو اس کے لیے آپ کا جو ہے یہاں پہ درج کرانا BC بول کر بہت ضروری ہے. اچھا اوکے. 39 کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جی. اوکے. اگلا ہے 40 کے تحت کہ جو NGOs ہیں اور کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں, کارپوریشنز ہیں اور ادر اس طرح ٹرسٹس ہیں, اس میں اگر کوئی ممبر ہے تو وہ کمپنیز بھی ہیں, تو اس کے اندر جو ہے ذکر کیا جائے کہ اس سے کون ریلیٹڈ ہیں, اور فیملی کے کچھ لوگ ہیں یا کوئی ایک آدمی ہے تو اس کو اس کھانے میں ضرور مینشن کیا جائے, اس کو بالکل نظر انداز نہ کیا جائے. اس خصوص میں خاص کر مدرسے کے ذمہ داران جو ہیں وہ اس کا بھی اندراج کروائیں. ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے جو سروسز دے رہے ہیں ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اندراج کرائیں. وہ سوسائٹی کے اندر رہیں گے. اوکے. نہیں وہ لوگ بولیں گے ہمارا چلاتے ہیں, سوسائٹی سے ہمارا کہتے ہیں NGO کیا ہے, وہ بھی ایک NGO ہی ہوتی ہے. NGO ہی ہے وہ بھی, مدرسہ بھی. ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں, ویلفیئر کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی بھی ممبر کسی بھی سطح کے وہ ہیں تو وہ اس میں ضرور ذکر کریں. مسلمانوں کے چند علمی ادارے ہیں وہ کمپنی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے, جیسے کہ PA انعامدار ہے پونا میں, وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چلاتے ہیں, مانے یونیورسٹی ہے ان کی. نارتھ ایسٹ میں آسام میں ایک مولانا ہے وہ بھی یونیورسٹی چلاتے ہیں. یہ کمپنی ایکٹ کے تحت ہے, اور کمپنی ایکٹ نان پروفیٹیبل کمپنی ایکٹ ہوتا ہے تو اس کے تحت چلاتے ہیں. تو جو بھی
अगर वहाँ पे आप काम कर रहे हैं या उसको चला रहे हैं, वो ऐसे ही लिखे कि फलाना कंपनी मेरा है, मैं चला रहा हूँ। ओके ओके। इसके बाद अगला जो है 41, उसमें अगर हमारे इलाकों में कोई अभी नहीं रह रहा है, ख़ानदान का कोई फ़र्द, तो उसमें मेंशन करना है कि वो कहाँ गया है और किस मकसद से गया है, पढ़ने के लिए गया है, मुलाजिमत के लिए गया है। ये जो है यहाँ पर 41 के तहत आता है। वो इस सिलसिले में दो वजाहतें हैं, ये हिजरत से मुताल्लिक है। एक तो आपकी अंदरूनी मुल्क दूसरी रियासत में अगर मुकीम रह रही है तो वहाँ पे वो एक जिक्र करना है। दूसरा ये बैरून मुल्क है, तो और दोनों की फिर नौयत है, तालीम के रोजगार के सिलसिले में या तालीम के हुसूल तालीम के सिलसिले में। तो ये दोनों भी वजाहतें की जाए। एक बहुत अहम सवाल है यहाँ पर कि किसी फैमिली के अंदर मिसाल के तौर पे कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन्यूमरेटर उनके पास पहुंच रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर नहीं है और बाहर गए हुए हैं, उनके बारे में तो ये हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों की पूरी फैमिली जो है वो बाहर है, तो उनका इंदराज कैसे होगा? इसका यही है कि हम जो आखिर में जो बात करेंगे तजावीज़ में, तो इसमें होना ये चाहिए था कि हम हुकूमत से मुतालबा करना है कि हमारे जो सिफारत खाने हैं वहाँ पे इसका इंतजाम किया जाए, कि वहाँ पे हम लोग ये तमाम मालूमात रखें और सिफारत खाने के तवज्जुह से हमारी हुकूमत तक ये मालूमात। एक सफारत खाने का एक पहलू है, दूसरा एक पहलू ये भी मुमकिन है, जैसा कि मुज़ाकरे में आया और अब आगे भी हम डिस्कस करेंगे उस मौजू पर, कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सहूलत होनी चाहिए। ये तो यहाँ मौजूद लोगों को भी होना चाहिए। हाँ, ये हम आखिरी हिस्से में इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, अगला जो है वो 42 है और 43 और 44 है। इसमें कोई कर्ज लिया गया हो या उधार लिया गया हो और किससे लिया गया है, तो इसका जिक्र है, इसको भी मेंशन किया जाए। इसका भी खासकर ख्याल रखें और लिखाएं, क्योंकि छोटे कारोबार करने वाले स्लम बस्तियों में रहने वाले खासकर मुसलमान इसका शिकार है। तो ना सिर्फ हम कर्ज बोले तो यही समझते हैं कि हम सरकारी इदारों से अगर कर्ज लिए नहीं, अगर साहूकारों से भी लिए हैं तो इसका भी इंतजाम करो। ठीक है, ये है। अगला जो है सवाल है वो किसी शख्स के पास जो है एग्रीकल्चरल कोई भी एक्टिविटी है तो उसका वो इंदराज कराए, तो इसकी क्या तफसील है, क्या इसमें होना चाहिए? इसमें जैसे होता है कि देही इलाके में खेत तो नहीं है लेकिन ट्रैक्टर मैं रखता हूँ और ऐसे बहुत खिदमत फराहम करता हूँ। इसी तरह ऐसे मैं जरासीम के अद्वियात का छिड़काव का ऐसे ठेका लेता हूँ। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, या ये मुल्क सरगर्मियां जो होती है ज़राअत से मुताल्लिक़, वो उसमें उसकी तफसीलात हैं। ओके, 45 क्वेश्चन जो है जी वो अंदर कॉलम नंबर 16, 18 और 20, 21 से जुड़ा हुआ है। तो आप जब लिखते हैं 45 का जवाब लिखते हैं तो आप क्या एग्जैक्टली क्या काम करते हैं वो पूरे तरह से लिखना पड़ेगा। ओके, जो अगला जो मैं जो नंबर बोला हूँ उससे कॉन्ट्रडिक्ट ना हो। ये जो 16 कह रहे हैं आप, 18 कह रहे हैं, ये रोजगार के से जुड़ा हुआ इशू है ये, तो वो आकर यहाँ भी जो है जुड़ जाएगा पॉइंट 45 से, कि क्या ये मवेशी जो है किसी के रोजगार का जरिया है, उसको जिक्र करना है। ठीक है, और इसके बाद में 47 और 48 है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि उसको जिक्र किया जाए। इस सिलसिले में कोई खास एहतियात? यहाँ पे खदशात है, मुसलमान डर रहे हैं कि हम हमारी जायदादों की तफसीलात क्यों बताएं। जरूर बताइएगा, अगर नहीं बताते हैं कल बुलडोजर आएगा तो फिर आपको होगा कि आपने तो पता ही नहीं था कि आपके पास कोई जमीन है, या आपकी जमीन पर या आपके घर पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो आप बोलेंगे कि आप एक जगह ये कहते हैं कि मेरे पास कोई मनखुला या गैर मनखुला जायदाद नहीं है, फिर आप आकर ये क्लेम करते हैं कि ये जायदाद नहीं है। तो इसलिए बगैर डरे जो है वो दुरुस्त मालूमात दें। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन बताए, घर के मालिक हैं तो घर का। आप फरमा रहे हैं कि ये कास्ट सेंसस जो है ये बहुत वसी दायरा रखता है और उसके बहुत दूररस नतायज सामने आएंगे। ये सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं, इसमें देखिए इन लोग खुद बोल रहे हैं कि सोशल इकोनॉमिक
एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कॉस्ट। बिल्कुल तो बिल्कुल ये पूरे चीजों का अहाता होगा, इकोनॉमिक से भी आएगा, आपका सोशल भी आएगा, सही है, पॉलिटिकल भी आ रहा है, पॉलिटिकल भी आएगा। सही। तो हम ये सिर्फ इसको महदूद ना समझें कि ये सिर्फ जात पात का सवाल है। खदशात के शिकार न हो, बल्कि इस सिलसिले में जो है वो और पूरे अगर कोई ये समझता है कि मेरे कोई बातें छुपाने से हुकूमत को उसका इल्म इल्म नहीं होगा, है। तो ये गलत फहमी दूर कर लें। एम ए शकील साहब, इस सिलसिले में अगर कोई कानूनी पहलू है तो आप उसको वाज़ेह फरमाएं। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड मूवेबल इमूवेबल जो इंदराज की बात की जा रही है, हाँ पॉइंट 47 एंड 48 में। हाँ, इसमें जो है आपको बताना ज़रूरी है पूरे प्रॉपर्टीज को, क्योंकि ये जो धरनी वगैरह जितने भी आपके आगे चल के जो कनेक्टिविटी आएंगी, अगर आप यहाँ पे नहीं बताएंगे और कहीं जाके आप रजिस्टर करने जाएंगे तो जो है मुश्किल है, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है वो लगभग जो है 240-280 जो है इंस्टीट्यूशन से जो है कनेक्टेड है आप। तो आप कहीं ना कहीं जो है आधार कार्ड हर जगह पे देना जरूरी हो रहा है आपको। आप देने के बाद में वो कनेक्टिविटी आ रही है, आप अगर आप नहीं बताने से और यहाँ नहीं बताने से जो है उसमें मसले और बढ़ जाएंगे आपके। ओके। और एक ये है कि भाई मैं ये आगे हम देखेंगे इसको कि होमलेस लोगों के बारे में या जैसे कुछ भी नहीं है और रोड पे रहने वालों के लिए पास में नहीं बताया गया, उसके लिए हम कुछ आगे कुछ अहम पहलू ऐसे हैं जो इस सर्वे के अंदर छूट रहे हैं पॉइंट्स, उसके लिए रेस होना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। इस सिलसिले में गांधीनगर में जो इजलास लिया गया था उसमें जनता बरादरियों ने ये सवाल उठाया था कि हम तो बेघर हैं, सड़कों पर जीते हैं, तो हमारा क्या? इसका कोई जवाब नहीं। तो इनके लिए भी एक मैं समझता हूँ कि अलग इंतजाम किया जा सकता है। इनके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स जो रहते हैं, बेगर्स हैं, इनका कैसे होना चाहिए? हारिस मोहम्मद साहब, इस सिलसिले में ये 47, 48, 49 यानी 47 से लेके आगे तक 49 तक जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे एक चीज छूट रही है, जिनके पास जाती मकान है उनकी बात कर रहे हैं। और मुसलमानों में मसला ये है कि मुसलमानों में बहुत सारे लोगों को जाती मकान नहीं है, जाती घर है। तो इनका क्या करेंगे? इनका माने नॉट ओनली मुसलमानों का और गैरों का भी बिल्कुल नहीं है, तो वो चीज से सर्वे में होना चाहिए। भाई आपको अगर खास घर है क्या, या खास जगह है क्या, अगर है तो कैसा घर है, उसमें ऐसा होना चाहिए। 49 में शायद वो कवर कर रहे हैं कि ये ओन है या रेंट पर है मकान के बारे में। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपके पास कोई मकान, मतलब प्रॉपर्टी के आप मालिक ही नहीं है, मैं हूँ, मुझे मेरा कोई मकान नहीं है और मेरे पास सगरदादा का मकान, सगरदादा का जायदाद है, हम बांट लिए, उसमें 100 लोग बांट लिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, तो अब मैं क्या कहूँ? तो कानून है नहीं। ठीक है। तो ऐसे मुस्लिम में भी है प्रॉब्लम, ऐसे गैर में भी, अदर कम्युनिटीज में भी ये बात है। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, बिल्कुल। हिंदू फैमिली में सगरदादा से प्रॉपर्टी आती है, उन सब के बेनिफिट्स के लिए ये होना चाहिए। नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टी सगरदादा से आती है। ओके, ठीक है। जो अगला है 49, वो ओनर कौन है, आप जिस इलाके में आप रह रहे हैं वो क्या नौयत का है, जहां आप रिहाइश है, आपकी रेजिडेंस आपका ओनर नहीं है इसमें। नहीं, इसमें सब क्लास में है, ABCDEF में है। ये है कि शहरी है, देही इलाके का है, स्लम है, पहाड़ी इलाका है, ये चीजें वो लोगों को बताई गई, तो उसके उनको वोट्स दिए गए। वो आपसे पूछेगा भी नहीं, उन इलाके से एतबार से वो अपने लिए शुमार कुनिंदा अपने तौर पे नॉट एप्लीकेबल रहे। इसमें छत कैसा है, दीवारें कैसी हैं, देख के अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे ऐसा कर लेगा, मगर खासकर ख्याल रखें कि वो सही कर रहा है नहीं। हाँ अभी कहावत भी है जी, हैदराबाद का जो है अंदर मट्टी ऊपर चलना, ये मसला भी है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 49E में घर के दीवार जो है कैसे बने हैं, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा मुझे अंदर मट्टी कैसे ऊपर चलना है। ओके। हाँ, ताकि अगर कोई ऐसी स्कीम आती है तो उससे फायदा मिले, उसको मेंशन किया जाए। नेक्स्ट है 50, उसमें जो बेसिक एमिनिटीज हैं उस एरिया के अंदर, बुनियादी जो है क्या फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं, पानी है नहीं है, बिजली है नहीं है, और पीने का पानी कैसा मिलता है। ये 50 के अंदर
اس کو ذکر کیا. 50C میں ہے یہ. ادروائز 50A-B میں کیا انٹر کاسٹ میرجز ہوئے ہیں ان کے بیچ میں, اس کو مینشن کرنا ہے. یہاں پہ تھوڑے سے وضاحت ہے. ہمارے پاس ایک برادری سے دوسری برادری میں اگر نکاح ہوتا ہے تو ہاں 50 ہے, 50A ہے یہ. اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سید کی بیٹی شیخ سے کر لی جائے تو وہ انٹر کاسٹ میں نہیں شمار ہوتی ہے, لیکن ہم یہاں لکھا ہے اس کو انٹر کاسٹ, اس لیے کہ BCE میں جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں ذات پات ہے, مسلمانوں میں طبقاتی ہے, تو فرق پایا جاتا ہے, تو یہ لکھا ہے ضرور ریلیجیسلی نہیں ہے, لیکن اگر پریکٹس میں ایسا کچھ آ گیا ہے تو اس کو مینشن کر دیں. سماجی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے شریعت کا مسئلہ نہ بنے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, ہم صرف ایسا یہ کر لیں گے. ہاں اگر کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آزاد کی بچیوں کو اگر یہ کرتے ہیں تو اس کے کچھ بینیفٹس مل سکتے ہیں. اوکے, ایک بہت اہم ہے 50B, بہت اہم ہے یہ کہ عبادت گاہ جانے میں کوئی رکاوٹ ہے کیا. اس کو یعنی کہ کوئی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں اور وہ اپنی عبادت گاہ کو جانا چاہتا ہے. یہاں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جنوبی ہند میں تو ایسے کوئی مذہبی مقامات پہ تفریق نہیں ہے, لیکن آپ شمالی ہند میں جائیں گے تو وہاں پہ کئی ایسے حتیٰ کہ مساجد بھی ہیں جہاں پہ ایک مخصوص برادری کے لوگ ہی جاتے ہیں, دوسری برادری کے لوگوں کو جانے پر وہاں پر ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ بات نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بات نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں, اگر کہیں ہو تو یہ تو ہے, اگر ہے تو وہ لکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ دوسرے ذات کے اس میں کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ غیر مسلم یعنی ہندوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھے کہ ان کی اپنی مندریں الگ الگ ہیں وہاں, تو یہاں پہ بھی اگر یہ بات آ گئی ہے کہیں آ کر ہو رہا ہے, مگر خدا مسلک کے معاملے کو اس سے نہ. ہاں ٹھیک ہے, مطلب یہی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو جو ہے اپنی عبادت گاہ تک پہنچنے کے اندر کچھ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں تو اس کو اس میں مینشن کر دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. BC-50A میں آپ کے گھر کے لوگ کوئی دوسرے ذاتوں کے لوگوں سے شادی کرتے ہیں, یہ ہے. تو یہاں پہ یہ کوسچن میں اگر یہ کوسچن جو ہے مسلمانوں کو ریلیٹڈ, مسلمانوں سے اگر جڑا ہوا ہے تو یہ غیر مسلم سے شادی کرنے میں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا دو کالم ہونے چاہیے. ہاں دو کالم ہونا چاہیے, مانے بین مذہبی بین ذات. عام طور پر اس کا جو پس منظر ہے وہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ چونکہ مسلم اور غیر مسلم ادر کمیونٹیز کے اندر اس کو جو ہے بہت بڑا ایشو بنایا جاتا ہے, اس کو سامنے رکھ کر یہ کوسچن آیا ہے یہاں پر. ان کمیونٹیز میں بھی پرابلم ہے. اگر سنی مسلمان جو ہے کوئی داؤدی برا کے لوگ سے شادی کرے گا یا نہیں تو شیعہ. اب مسلمس میں عام طور پر یہ سوشل اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, عام ٹھیک. اور BC-B میں مانے یہ 50B میں یہ مسئلہ ہے کہ خوجہ کمیونٹی کے یہاں پہ 2-3 مسجدیں ہیں, وہاں پہ ہم لوگ جا کے ان کے ساتھ نماز پڑھ نہیں سکتے, مانے ایشوز رائز ہو جائے. اور مسلمانوں میں چند کمیونٹیز کا ایک کمپلینٹ ہے کہ اسپیشلی نورباشا کمیونٹی سے, اللہ کمیونٹی سے کمپلینٹ یہ ہے کہ ہم سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, اور دوسرے ٹائم میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم کو نیچے دکھایا جاتا ہے, ہم کو آنے نہیں دیتے. یہ کمپلینٹ ہے. تو اسی یہ BC-B کمیونٹی سے اس میں میں آپ کو یہاں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. نہیں میں ایک چیز یہاں پر وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ریلیجیس اسکالرس ہیں ہمارے, وہ اس کے اوپر خاص طور سے کام کرتے ہیں, اسپیشلی جو ہے ولیجز میں جا کر, اور یہ اویئرنیس لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور خاص طور سے کام کر رہے ہیں, اب سے نہیں برسوں سے کر رہے ہیں. اور لوگوں کو جو ہے بھائی بحیثیت مسلمان کوئی ہے تو وہ مسجد کو آئے اور عبادت کرے, اور وہاں پر جو ہے اونچا نیچا کا کوئی تصور ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ. ایک چیز اس کے اندر جو ہے اب اخیر میں 50D ایک ہے کہ دوسرے جو کمیونٹیز ہیں ان کے میرجز میں اگر کوئی شرکت کے لیے جاتا ہے تو کیا اس کے لیے بلا رہے ہیں یا نہیں بلا رہے ہیں, یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے. غالباً یہ 50D ہے. یہ
हाँ, ये भी सवाल यहाँ पे ये भी सवाल इस तरह नहीं पूछा जाना चाहिए हारिस भाई। हम लोग अगर ये लोग क्या है माहिरीन से लेते तो यहाँ पे है कि बुलाया जाना अलग है और सो शिरकत करना अलग बात है। ये दो चीजें हैं। फिर दूसरी बात, एक बात ये यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं, जो बुकलेट्स वगैरह है, इसमें मैं समझता हूँ कि शुमार कुनिंदा आपसे आपके पास गाड़ियों के बारे में भी तफसीलात इकट्ठा करेगा कि आपके पास किस नौयत की गाड़ी है, 2 पहिए की गाड़ी है या कार वगैरह है। ये आ चुका है, ये मूवेबल प्रॉपर्टीज के पर्टिकुलर क्वेश्चन करेगा। हाँ, 48 नंबर। क्योंकि आपके पास गैर मनकूला वाले तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग ये चीजों को यानी असासे में शुमार ही नहीं करते। ठीक है, 48 पॉइंट के अंदर है ये। इसको भी नजरअंदाज ना करें, अगर है तो दिखाएं। ठीक है। अब एक बहुत अहम तरीन चीज है आखिर में कि इस फॉर्म के आखिर में आपकी दस्तखत होना है, फ़ोन नंबर उसमें आना है और तारीख का जो है उसके अंदर जिक्र होना है, मेंशन करना है। स्पेशली जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका अलग खाना बना हुआ है, इन्यूमरेटर का अलग बना हुआ है और उसके सुपरवाइजर का बिल्कुल अलग बना हुआ है। और एक चीज़ इसके अंदर है कि इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर जो है वो कोड नंबर्स दिए गए हैं, उन कोड नंबर के लिहाज से ही ये फॉर्म भरा जाएगा। इन चीज़ों को जो है वो हमें मलहूज रखना है। ये हमने जो फॉर्म कैसे भरा जाएगा बहुत तफसील से हुआ, क्योंकि एक बहुत अहम सर्वे है, हर पॉइंट जो है वो डिस्कशन में आना चाहिए। आम आदमी को इस सिलसिले में गाइडेंस मिलना चाहिए कि कुछ गलती ना हो। उसके लिए माहिरीन से जो है हमने यहाँ पर राय ली है और ख़ास तौर से उलमा इकराम इस बारे में बड़े फ़िक्रमंद हैं कि ये सर्वे हो तो पूरे एहतमाम के साथ लोगों का इसके अंदर इंदराज हो। कानूनी तौर पर जितने पहलू पेश नज़र रहना चाहिए वो सब उसके अंदर जिक्र किए जाएं, लोगों के अंदर इसमें अवेयरनेस होना चाहिए। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे जिक्र करना चाह रहा हूँ जो ये सर्वे फॉर्म में हमारे नज़र से मिस हो गए। एक जो है यतीम लोग कहाँ पे, यतीम लोगों को इसमें जगह कहाँ, यतीम खानों को इसमें जगह कहाँ, और जो ओल्ड एज बूढ़े लोग जो है उनको जगह कहाँ। मैंने बूढ़े लोग जिनके बच्चे घरदार भी नहीं है, तो ये बहुत अहम बात कर रहे हैं आप कि बूढ़े तो हैं लेकिन उनके कोई बेटा बेटी सहारा नहीं है। वरना ओल्ड एज का आइडिया जो वेस्ट का है कि बच्चे तो हैं, ख्याल रख सकते हैं, लेकिन ले जाकर ओल्ड एज होम में डाल रहे हैं। तो हमारे कम्युनिटी लीडर्स और रिलीजियस स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ट्रेंड जो है ये चलन अच्छा नहीं है। लेकिन जो आपने बहुत अहम बात कही है कि जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए इसमें कुछ नहीं है, उनके लिए ये नहीं है। सिंगल वुमन मैरिटल स्टेटस वगैरह उसमें जिक्र है, उसमें जिक्र है सिंगल वुमन नहीं है, सिंगल वुमन मैरिटल स्टेटस में है, मैरिटल स्टेटस में आप है। लेकिन सवाल ये है कि यतीम खानों में के अलावा भी यहाँ पे जो ओल्ड एज होम के हैं, बाज हम लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों में ये रुझान नहीं है, बहुत से ओल्ड एज होम मुसलमानों के भी चल रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जिनके बच्चे यूरोप और अमेरिका में हैं वो पैसे होने के बावजूद यतीम खाना में रहने पे इसलिए मजबूर है कि बीमारियों में उन्हें अगर कुछ हो जाता है तो ये नौबत भी आती है कि अस्पताल ले जाने वाला कोई ना हो, तो अस्पताल ले जाने तो ऐसे कई हम मेरे नजरों में हैं कि कई ऐसे वाकयात भी हुए, खुद हैदराबाद में भी, जिनकी कोई देखभाल करने वाला यहाँ नहीं है। 3-4 दिन के बाद इत्तला। सही बात है। तो इस सिलसिले में ये होना चाहिए। बहुत सी बातें जो तजावीज़ में आ रही है उसमें ये है कि यतीम खाने और टिमरिस में भी कुछ बच्चे रहने वाले हैं जो तातीलात में भी अपने घर नहीं जाना चाहते। ये एक अलग मसला है, तो उनका भी इंतजार होना चाहिए और ये इश्यूज उठाना चाहिए। डिसेबिलिटी का जो इसमें कॉलम था हम उस पर वर्कआउट नहीं करें। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स है या नहीं है, तो आपको डिसेबिलिटी इनकर्ड है या फिर बाय बर्थ है, वो जो भी है वो पूरा उसमें लिखा, उसको मेंशन करना चाहिए। बहुत अहम बात बतला रहे हैं एम ए शकील साहब के। माजूर अगर कोई है तो उसका खाना है, उसके अंदर उसका जिक्र खास तौर से होना चाहिए और किस नौयत की डिसेबिलिटी है उसको जिक्र करना चाहिए। और कितनी है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी उसमें होना चाहिए करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये फॉर्म्स कैसा भरना चाहिए ये तो हमने सिलसिला पूरा किया, लेकिन यहाँ कुछ बहुत अहम इश्यूज हैं और गवर्नमेंट के सामने उन इश्यूज को हमें रेस करना है। वो सेशन हम शुरू करते हैं वो सवालात से मुताल्लिक। सबसे पहली तशवीश जो इस सर्वे से मुताल्लिक है वो ये कि 3 हफ्ते की जो है इसके लिए मुद्दत दी गई है और जिन एन्यूमरेटर्स को इस काम के लिए लगाया गया है ऑलमोस्ट उनका आधा दिन वो जो है वो स्कूल या किसी और एक्टिविटी में जाने के बाद
दोपहर से शाम तक का कुछ महदूद वक्त में उनको इसका पाबंद बनाया जा रहा है कि वो इस वक्त के अंदर करेंगे। तो अब सवाल ये है जो हम गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं और आपसे भी हम इस सिलसिले में रहनुमाई तलब करते हैं कि क्या इस मुद्दत में कि 3 हफ्ते में और इस वक्त में कि दोपहर से शाम तक के वक्त में एन्यूमरेटर्स आए और इतनी बड़ी रियासत के अंदर ये सारा काम सर्वे का मुकम्मल हो जाए, क्या ये मुमकिन है और क्या होना चाहिए? ये नामुमकिन है। मैं इसमें 2-3 चीजें बोलूंगा कि इन्यूमरेटर एक तो वो फॉर्म अपने पास रखेगा जिसमें उसको इंतजात करना है, साथ में उसको बुकलेट रखना पड़ेगा जिसमें कोड्स। तो 2 लोग आ रहे हैं आपके पास, तो 80,000 बता रहे, तो एक घर के लिए 2 लोग हो गए, तो 40,000 लोग। इस एतबार से अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो कम से कम 400 एंट्रीज करना है जी, हर फर्द की एक एंट्री जी। तो 400 अगर इंदराजात करेगा और वो भी पूछ कर, फिर इसमें आधार नंबर लिखना है, इसमें जो धरानी पट्टे का नंबर लिखना है, इसमें उसको अगर डाउट आया तो तालीमी सदाकत नामों को की जांच करना है। तो ये कर पाया तो मैं समझता हूँ एक शुमार बनिंदा बमुश्किल एक घर एक दिन में कर पाएगा, 1-2 चंद कर पाएगा बड़ी मुश्किल से। मैं अगर सही इंदराजात कर रहा है तो दूसरा घर नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत नाजुक मसला है जिसके लिए जो है बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये जो मुद्दत दी गई है 3 हफ्ते की, और इसमें भी इतना महदूद वक्त जो है वो सर्वे करने के लिए एन्यूमरेटर्स को पाबंद बनाया जा रहा है। इसमें पूरी रियासत का और रियासत के हर बाशिंदे का अहाता और कवरेज नहीं होगा, और जब ये कवरेज नहीं होगा तो फिर बहुत सारे लोग इस सर्वे से महरूम रह जाएंगे और ये बहुत बड़ा जो है नुकसान है हमारा। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि इस मुद्दत को जो है डिमांड करते हैं कि इस मुद्दत को बढ़ाया जाए, और ताकि जो है असल टारगेट होना चाहिए कि हर आदमी जो है इसमें हर बाशिंदा रियासत का वो इस सर्वे के अंदर जो है उसका कवरेज हो जाए, कोई महरूम ना रहे। ये है कि ये 3 हफ्ते या कोई भी मुद्दत, हम मुद्दत बढ़ाने की बात कर रहे हैं सरकार से, तो हम आपके जरिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो टीचर्स को जो आप जी हाँ, टीचर्स भी हैं और टीचर जो बहुत से टीचर्स भी आशा वर्कर्स हैं भी है, और जो है आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स भी इस पर को दे दिया गया है। तो टीचर्स को जो है इसमें निकालने में जो है बच्चों का जो है राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है, वो आरटीई के तहत में वायलेशन है, प्लस जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ में भी वायलेशन है। तो हम ये चाहें कि जो है ये टीचर्स को जो है अगर आप हटाकर और कोई जरिए से नहीं, उसमें फिर एक इशू ये है, देखिए हमको कई पहलुओं से सोचना चाहिए कि फॉर्म जो है फिल करना ये एक यानी कैपेबिलिटी चाहता है, एजुकेशनल उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आशा वर्कर्स हैं या कोई और वर्कर हैं, वो पढ़े वो और फिर कहाँ मुनासिब जगह पर उसको इंदराज करना चाहिए वहाँ पर इंदराज करे। उसके लिए टीचर्स जो हैं अगर हम उसको निकालने की बात करेंगे तो फिर ये एक तो आप जो फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और ऑर्डर्स वो अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन गवर्नमेंट फिर उसको फुलफिल कैसा करेगी? टाइम बढ़ाइए आप। इसमें ये 2-3 चीजें देखिए, आप तातीलात में काम लेना है, अगर असातिज़ा से काम लेना है तो तातीलात के दिनों में लेना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी है। दूसरा आरटीई एक्ट के तहत 800 घंटे बच्चों को पढ़ाना है साल भर में, पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चों की। अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे तो बच्चे का जो हक तालीम है आप उसके खिलाफ वर्जी करें। तीसरी बात ये है कि असातिज़ा की बात है, आशा वर्कर्स बता रहे हैं, ये फॉर्म में गारंटी से बोल सकता हूँ कि आशा वर्कर्स और दूसरे जो लोग हैं ये फॉर्म फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये अहम आप जो बातें कह रहे हैं स्टूडेंट्स का राइट और टीचर्स का इशू वो अपनी जगह से दुरुस्त है, लेकिन बुनियादी जो कंसर्न है, बेसिक कंसर्न वो यही है कि रियासत के हमारे स्टेट के हर जो है सिटीजन का इस सर्वे के अंदर कवरेज हो, उसके लिए मुद्दत बढ़े और अहल और केपेबल लोग जो हैं वो इन्यूमरेशन के लिए वो आ पाएं। और एक चीज मरहले में आ गए ना, हाँ इस सिलसिले में हाँ, तो नहीं अभी कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एक चीज जो है लैंग्वेज का मसला है। बहुत से इन्यूमरेटर्स ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे अगर उनको सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज आती है और वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के पास अगर जाते हैं तो वो ना उनकी बात समझ पाएंगे और ना तेलुगु स्पीकिंग लोग जो है वो उनके बात को फॉर्म में
इंदराज कर पाएंगे, सही सवाल भी इसका भी नहीं हल कर होना पाएंगे, चाहिए। सही जवाब भी नहीं है। और ये खासकर मुसलमानों के साथ ही होगा, इसलिए कि मुसलमानों की 95% आबादी उर्दूदां है, और हैदराबाद में आए तो पूरी 7% ऐसे मुसलमान है जो उर्दूदां हैं। तो सवाल ये होता है कि हुकूमत भी इस बात का खास ख्याल रखे कि जो इलाकों में जिन शुमार कुनिंदों को भेज रही है वो शुमार कुनिंदे उस इलाके के लोगों की आम जबान से वाकिफ हों। बहुत सही बात है। एक अहम चीज़ ये है कि बहुत सारे मौक़ों के ऊपर सर्वे के दौरान लोगों को शिकायतें होती हैं और फिर पता चलता है कि भाई टाइम ख़त्म हो गया और उनकी शिकायतों को सुना नहीं गया, और लोग उससे, उस सर्वे से और उसमें इंदराज से महरूम रह जाते हैं। इसका हल के लिए क्या होना चाहिए? जो ग्रीवेंस सेल की बात की जाती है कि शिकायतों को लिया जाए और फिर उसका हल निकाला जाए, जनाब माजिद शुतारी साहब इस सिलसिले में क्या कहते हैं? ये मरहले पे आप सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नहीं, फर्स्ट गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ये एक बार आप अपना सवाल कर। सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनके मिसाल के तौर पर इन्यूमरेटर उनके पास आए ही नहीं जी, या आए लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से वो बगैर सर्विस दिए हुए चले गए या कुछ और इश्यूज ऐसा हो गए, तो ऐसी सूरत के अंदर आम आदमी अपनी शिकायत को कि भाई मेरा फॉर्म नहीं भरा गया, मेरा सर्वे में मेरा कवरेज नहीं हुआ, इसकी गवर्नमेंट को वो कैसे इत्तला देगा और इसका सोल्यूशन कैसे निकल कर आएगा? ग्रीवेंशियल फॉर्म होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर एक इंचार्ज मिनिस्टर होना चाहिए, उसके अंडर एमएलए, लोकल एमएलए जो भी है, एक क्राइटेरिया बनाकर एक टीम बनानी चाहिए कि यहाँ पर ग्रीवेंशियल 24/7 हो। जिस तरह की भी एक इश्यू हो, चाहे लैंग्वेज का बैरियर, लैंग्वेज इश्यू हो या कि इन्यूमरेटर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारी ओल्ड सिटी हैदराबाद का हम जिक्र करें तो कई डोर नंबर्स होते हैं जिनके एक ही नंबर के ऊपर 17-1-375 (A) से लेके आपको Z तक भी होता है, फिर (1) से लेके 100 तक भी होता है। क्राउडेड जहां पे भी पॉपुलेशन है वहां हर जगह है, सिर्फ ओल्ड सिटी नहीं बल्कि दूसरी जगह पर भी ऐसा हो सकता है, तो मिस हो सकते हैं। तो ये होता है कि जब इन्यूमरेटर आ रहा है, जो एक लोकल में जब आ रहा है, जब पता चल रहा है कि हमारे एरिया में सर्वे है, तो वहां पर होना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो आपने कॉर्पोरेट या जो भी है वो लोग उनके साथ हो। ओके, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल कम्युनिटी के अंदर जो है कुछ लोग खड़े होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास ब्लॉक लेवल के ऊपर जो है लोग। इस सिलसिले में ये कीजिएगा कि मसाजिद की इंतजामी कमेटी अहम रोल अदा कर सकती है। वो लोग कम से कम अपनी मस्जिद के दायरे में आने वाले मकानात के लिए अपनी तरफ से नुमाइंदों को रखें, और खासकर मैं तलबा बरादरी से भी ख्वाहिश करूंगा कि वो थोड़ा सा वक्त दें इन शुमार कुनिंदों और घर वालों के दरमियान में जो वक्त लगेगा, यानी इन्यूमरेटर को और तो उसमें गाइड करें दोनों को भी, घर वालों को भी और शुमार कुनिंदे को। हर एरिया में जो एनजीओस हैं तो एनजीओस भी करें। इसके लिए मैं समझता हूँ अगर कोई एक हैदराबाद में हमारी तरफ से एक ग्रीवेंशियल के जैसे सहलकारी मरकज बना देते हैं, जैसा मैं बताया कि शुमार कुनिंदा क्या लिखता है वो कोर्स भी अगर रहनुमाई करने वाले नौजवानों के पास बहुत अच्छी बात, तो ये चीज होनी चाहिए। इसके अलावा मंडल सतह पर और जिला सतह पर शिकायती सेल सरकारी दफातर में हो और रियासती सतह पर एक सेक्रेटरीट में इसके लिए रखें, ताकि अगर कोई चीजें आती है, मुमकिन है कि एक इलाके में एक शुमार कुनिंदा होता है आरएसएस के ज़ाहिन का और वो चाहता है कि बदमाशी करे, आपके इंदराजात गलत करे, तो मैं अगर वैसे मुसलसिल हो रहा है और घर वालों से जाकर उल्टे सीधे बातें करता है, तो हमको उसको बदलवाने के लिए भी हमारी नुमाइंदगी करने का मौका होना चाहिए। तो ये शिकायत सेल अगर मंडल सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह में हो तो अवाम वो शिकायत कर सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि मेरे पास जो शुमार कुनिंदा आ रहा है उसको उर्दू जबान नहीं आती, जबकि ये इलाके में रहने वाले पूरे उर्दूदार हैं, लिहाजा किसी ऐसे उर्दूदार को कम से कम एक शुमार कुनिंदे को साथ रखें। तो ये चीजें होनी चाहिए, ब्रिज होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो बातें हमारे सामने आई हैं उसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि एक ग्रीवेंस सेल इसके लिए कायम किया जाए, कहीं शिकायतें होती हैं तो फौरन उसकी जो है शिकायत को दूर किया जाए। और दूसरी चीज़ जो बात कही गई है वो ये, और उलमाए किराम भी इस सिलसिले में रहनुमाई कर रहे हैं कि NGOs भी हैं और मसाजिद के खुतबा और अइम्मा हैं और कम्युनिटी के दूसरे लीडर हैं, नौजवान हैं, ये सर्वे होने तक अपनी खिदमात को जो है वो अपने इलाकों के अंदर हर गली और हर ब्लॉक लेवल के ऊपर जो है वो पेश करें, ताकि जो इन्यूमरेटर्स आ रहे हैं पूरे घरों का और हर फर्द का जो है वो अहाता करे, कुछ इसमें से छूटने ना पाए।
और एक अहम चीज मुझे लग रहा है कि छूट गया, ये एन्यूमरेटर जो है ये वर्किंग आवर्स में आते हैं, माने सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे से नहीं, अभी इसमें मसला है, अगर टीचर्स है तो उनको कहा गया है कि दोपहर से आए, और नॉन टीचर्स को अगर ये लोग अपॉइंट करते हैं तो वो दिन में आ सकते हैं 9 बजे के बाद से लेकर शाम में 5 बजे। ओके। तो मसला मैं जो कॉन्सेप्चुअल बात ये बताना चाह रहा था कि वर्किंग आवर्स में मर्द लोग घर में नहीं रहते, औरतें रहती। औरतों को अगर हम इस चीज को फिलअप करने के लिए तैयार नहीं करेंगे, हर घर पे औरतों को इन चीजों को फिलअप करने के लिए हम तैयार नहीं करेंगे तो फालतू डेटा इसमें आ जाएगा। ये नंबर 1। नंबर 2, जो भी एन्यूमरेटर आएगा आप उसकी एथेंटिसिटी चेक करें, माने एन्यूमरेटर ही आया है या एन्यूमरेटर का बच्चा आया है। इससे पहले 2011 के सेंसस में मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा था, क्योंकि मैं टीम में था, ऑब्जर्वर टीम में था, तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे टीचर 10-5 हजार रुपए दे के अनएम्प्लॉयड यूथ को उन्होंने क्वेश्चनर दे के भेज दिया है। वो लोग आके सिर्फ 2-4 बातें पूछ के चले गए, वो अपने हिसाब से भर दिए। तो बहुत अहम बात है, इसके वजह से रॉन्ग डेटा आ गया है, और बहुत सारा ऑलमोस्ट 4 to 6% मुस्लिम आबादी 2011 के सेंसस में एन्यूमरेट नहीं, 4 to 6%, बहुत बड़ा ह्यूज जो है ये 4 to 6% एन्यूमरेट नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली पॉइंट तो औरतों का है, दूसरी पॉइंट ये है कि आपके घर पे एन्यूमरेटर ही आया या कोई दूसरा आया, ये आपको चेक करना जरूरी है। कैसे आईडी कार्ड, कोई आईडी कोई आईडी कार्ड, वही बंदा है, वो इलाके का, उसका शनाख्ती कार्ड से दिया जाए, उसका इलाके, वो इलाके का ही, माने वो इलाके को वो एंटाइटल किया गया है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और इसके लिए हर घर में ये पॉसिबल नहीं है, तो कम्युनिटी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स हैं, एक दो बंदों को एन्यूमरेशन जब हो रहा है, वो एन्यूमरेशन के टाइम में एन्यूमरेटर के साथ अपने वॉलंटियर्स भी 1-2 वॉलंटियर्स के साथ रहे। बहुत अहम बात है ये रहे। और तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होने के बाद रिसीट देने का कोई इसमें है नहीं, जिक्र नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि रिसीट नहीं, हमें पूरा फॉर्म, फिल्ड फॉर्म हमें, ये हमारा अगला सवाल यही है, अगला हमारा सवाल यही है कि बहुत से लोग जो है कई स्कीम्स के अंदर सर्वेज में अपना फॉर्म भरते हैं, एन्यूमरेटर्स आते हैं, लेकिन पता चला कि बाद में वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाज़ लोगों ने मिसाल के तौर पर राशन कार्ड के ऊपर जो है वो 4 मरतबा उन्होंने अपना फॉर्म भरा, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे डाउट्स लोगों के जहन में आते हैं कि ये जो फॉर्म भर रहे हैं, ये फॉर्म अथॉरिटीज़ के पास पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, या इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। उसका सोल्यूशन जो है ये समझ में आता है, जैसे कि आरिज मोहम्मद साहब ने कहा कि हर शख्स को उसका जो फॉर्म है जो उसने भरा है वो उसको फराहम होना चाहिए। अगर डिजिटल कॉपी, चूंकि अब काम शुरू हो गया, अब ये डिजिटल कॉपी देने के मौके में नहीं रहेंगे, तो मैं ये हुकूमत से अपील है कि कम से कम उस घर वाले को जो पुरकर्दा फॉर्म है उसकी तस्वीर ले लेने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि हर एक के पास सेल फोन है। और रसीद का क्या है, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड क्या, वो फोटो ले लेगा तो उससे क्या फायदा होगा। रसीद तो देनी चाहिए। हाँ, कम से कम ये होगा कि कल को आपके नाम से गलत एंट्रीज हो रही हैं तो आप बता सकते कि मैंने तो ये एंट्री करवाई थी, लेकिन यहाँ पर ये किए, तो कम से कम ये एक एहसास जिम्मेदारी होगी हुकूमत के पास भी, उस शुमार कुनंदे को भी एक डर लगे हुआ रहेगा कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं घर जाके मिट नहीं सकता इसको। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि हर आदमी को जो है ऑनलाइन अपना फॉर्म भरने की खुद सहूलत होनी चाहिए। ये अगर वक्त गुजर भी जाए तो उसके बाद ऐसा आप एक मुद्दत दे सकते हैं, यानी वक्त दे सकते हैं, उसमें ऐसा भाई जो उसमें एक प्रोविजन हो कि वो अपना प्रिंट आउट भी अपना भरा हुआ फॉर्म का ले ले। सेल्फ अटेस्टेड सो ये है, क्योंकि आपके हलफनामे के तौर पे ही होता है कि आप अगर प्रूव करते हैं तो आप जो भी बोलते हैं वो आपकी दानिश में सही बात बता रहे हैं, तो उसकी भी सहूलत होनी चाहिए। हम जब आईटी में बहुत आगे हैं, जब दुनिया को हम बहुत सी चीजें दे सकते हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल हमारे पास क्यों ना करें। तो ये बहुत अहम इश्यूज थे।
जहाँ तक एक्नॉलेजमेंट की बात है उसको लेके एक सोल्यूशन ये है कि ये फॉर्म में आखिरी पेज पे एन्यूमरेटर का एन्यूमरर का दोनों का साइन है। माने फैमिली हेड का साइन है, एन्यूमरेटर का साइन है, सुपरवाइजर का साइन उस वक्त नहीं हो पाएगा। तीन का है। तो मैं ये कह रहा हूँ जब एन्यूमरेटर आपके पास आएगा तो वो एन्यूमरेटर से हर शीट पे माने हर पेपर पे, यहाँ आखिरी में नहीं, हर पेज पे भी आप एन्यूमरेटर का साइन ले, आप भी साइन करें, ताकि सही तरीके से वो ये एक्सक्यूज कर सकते हैं कि वहां पर वो खाना बना हुआ नहीं है। आई एम सॉरी, मैं इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि वो फील्ड में ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं कि आखिर में खाना बना हुआ है, हम वहां करेंगे, वो इंसिस्ट कर सकते हैं। इस सिलसिले में माजिद साहब जो अभी बता रहे थे कि हुकूमत के साथ जो ताउन होना चाहिए, या तो वहाँ पे हुकूमत से शिकायत करते वक्त हम ये बताएंगे न्यूमरेटर से ये कह दिया जाए रोजाना उन लोगों की मीटिंग्स हो रही है, ठीक है। तो उस सिलसिले में अगर उनको कह दे कि हर पेज पे अगर दस्तखत कर दे तो बेहतर हो। किसी के पास फोन है तो वो ले लेने की इजाजत दे दे, फोटो ले लेगा, उसकी इजाजत दे दे। बहुत अहम इश्यूज पर हमने जो है अभी बात मुकम्मल की है। अगर कर दिए तो सबसे अच्छा ये हो जाएगा कि प्रिंट आउट आपको रिसीप्ट आ जाएगी। ठीक है कि एक बात तो ये है कि ये 3 हफ्ते के अंदर मुकम्मल नहीं हो पाएगा, तो हर बाशिंदे का कवरेज हो, इसमें इस पर तवज्जो हो हुकूमत की, और ग्रीवेंस सेल जो है वो ज़रूर उसको इस्टेब्लिश किया जाए, फॉर्म की कॉपी जो है वो हर एक को फराहम की जाए, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सहूलत हो। कम्युनिटी बेस भी जो है कुछ लोग खड़े हो जाएं जो इस सिलसिले में जो है लोगों को अपनी सर्विसेज दें, ताकि ये सर्वे हर आदमी के लिए मुकम्मल हो। मैं मौलाना मुफ्ती अबू बकर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस बारे में हमारे बड़े उलमाए किराम जो लोग यहाँ पे नहीं है, इंडिया में नहीं है, और फिर जो है माइग्रेंट है यहाँ से, तो उनके लिए भी जो है कोई, हाँ, जो लोग जिनमें से जिस फैमिली का कोई भी फर्द हमारी रियासत में नहीं है, उसके लिए जो है इसमें कोई सहूलत बज़ाहिर दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि एम्बेसी लेवल के ऊपर कोई इसकी सहूलत हो जाए, और दूसरे ये कि ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने की सहूलत हो जाए। इसके भी जो है गवर्नमेंट को डिमांड पूरी करना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बाज़ डाउट्स जो हैं सर्वे से मुताल्लिक़, उलमा इकराम इस सिलसिले में क्या रहनुमाई कर रहे हैं, मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। मुफ्ती साहब, 1-2 सवालात हैं। एक सवाल ये है आप लोगों से कि लोगों में बात चल रही है कि जिसके पास फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ऐसी सहूलतें हैं, एसी लगा हुआ है, तो वो बीसी के अंदर अपना नाम ना लिखाए। ये इसके सिलसिले में गलतफहमी ये है इस बारे में? नहीं, ये आपकी सहूलतों के बारे में है कि आपके मेयार ज़िंदगी क्या है वो पता चलता है। इससे आपके समाजी पसमानदगी का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप BCE से भी हैं तो अब जिला कलेक्टर है कहीं SC ST से, तो क्या उसके पास क्या फ्रिज नहीं होगा? तमाम सहूलतें मैसर हैं। अगर कोई IT कंपनी में काम करता है तो इसका ताल्लुक सिर्फ आपके मेयार ज़िंदगी से है, और उसके यकीनन ऐसो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, कौन सी है आपके पास, फ्रिज है, कार है, सब चीजें वो लोग ऐसे पूछेंगे। और कोडिंग तो है अपनी जगह पर, लेकिन आप जो फरमा रहे हैं दीजिएगा, हाँ, अगर है तो देना है। इवन इसमें पकवान आप किस पे करते हैं, चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे करते हैं, केरोसिन पे करते हैं, या वो है, या आपके पास गैस है। इससे ये चीजों के होने से आपके BCE सर्टिफिकेट को रद्द नहीं किया जाएगा। ओके, ये जहन में रखिए, ये गलतफहमी दूर हो जाना चाहिए। और कोई ऐसे ही एक अहम सवाल ख़ास तौर से एडवोकेट साहब हमारे में शकील साहब से भी और आप हजरात से, कि क्या इस डेटा को NRC में, NPR में इस्तेमाल किया जाएगा, और इस हवाले से जो लोगों में बहुत ज़्यादा ख़यालात पाई जाती है, गलतफहमियाँ पाई जा रही है, उस सिलसिले में आप लोग क्या कहते हैं? आपका डाटा जो है आप दें या ना दें, ऑलरेडी सरकार के पास में है मौजूद। तो ये डाटा ऑलरेडी आप जो है यहाँ पे आप ये जो देने से जो क्लियर डाटा आपका आएगा, नाम करेक्ट लिखाइए, जो सर्टिफिकेट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट लिखाइए, और जो भी आपके एजुकेशन की जो सर्टिफिकेट्स है उसके हिसाब से, और आपके पासपोर्ट के हिसाब से, आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपका नाम लिखाइए। और मतलब हमें ये डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आप ये डाटा तो ऑलरेडी आप
آپ کو اور مضبوط کرے گا یہاں پہ رہنے کے لیے. آپ اس سے جو ہے جو کمیاں تھی آپ کے پاس میں, جو ریکارڈز برابر نہیں تھے, تو یہ ایک موقع ہے آپ کو کہ وہ چیزوں کو باہر لا کر وہ ٹھیک کر لینے کا. ٹھیک جی ماشاء اللہ. یہ جو ہے سماجی اور جو ہے اکنامیکل یعنی روزگار سے متعلق پولیٹیکل الگ الگ تمام پہلوؤں کا کوریج اس کے اندر ہے, اور یہ فائدہ مند ہی ہے, کوئی اس میں خدشہ اور شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انکم ٹیکس وغیرہ کا معاملہ ہے, جو اگر آپ انکم ٹیکس بھرتے ہیں تو برابر بتائیے اس کے اندر, کیونکہ آپ کے اخراجات آپ کی جو بھی ہے آج کل پورے آن لائن ہو رہے ہیں, آپ کو پیسے آن لائن آ رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, پھر آپ بولتے کہ پھر میں اس میں نہیں ہوں. آپ کلیئر بتائیے اس کے جو راستے پھر آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ کی اڑچنیں بڑھ جائیں گی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. میں مفتی صاحب کچھ ہاں مفتی, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو سوالات ہے, شاید لوگوں کے لیے اس کی وضاحت ہو جائے. ابھی بات آئی ہے کہ مسلمانوں میں بھی ذات پات ہے, ٹھیک ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی وضاحت ہو جائے کہ مسلمانوں میں جو مختلف قبائلی فرق ہے, تو اس فرق کا کہاں تک اعتبار ہے, اور ہم کو جو یہ فارم فل اپ کرنا ہے تو سماجی اعتبار سے یہ ذات پات کا معاملہ ہے, یہ جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سارے مسلمان ایکول ہے, اس حوالے سے کیا آپ فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. ساری ہی اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آ چکی ہیں. یہ اجلاس کل جماعتی نمائندہ کمیٹی کی طرف سے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم مفتاحی اور دیگر اکابر کی مشاورت سے منعقد کیا گیا. جو معلومات پیش کی گئی ہے ماہرین کی نگرانی میں اچھی خاصی مشاورت کے بعد اور اپنی معلومات کو جانچ کر آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا ہے. امت مسلمہ کو صوبہ تلنگانہ کے ہر دردمند مسلمان کو اپنی ملی ذمہ داری کا احساس کرانا مقصود ہے. اس کو آپ اپنی ایمانی ذمہ داری سمجھیے, اسلامی ذمہ داری سمجھیے, وطنی ذمہ داری سمجھیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک کہ بندہ دوسرے بندے کی مدد میں رہتا ہے. ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں, کھانا کھلانے کی فضیلت حدیث میں موجود ہے, پانی پلانے کی فضیلت حدیث میں موجود ہے, کپڑا پہنانے کی فضیلت حدیث میں موجود ہے. کیا ایمان والے کی اور ایک ملک کے باشندے کی شہریت کو یقینی بنانے اور اس کے وجود کو یقینی بنانے اور اس کے قانونی تحفظ کو یقینی بنانے کی جو خدمت کی جائے گی, اس کے لیے وہ ساری فضیلتیں ہیں جو کھانے پانی سے متعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ہمارے عزیز دوست مفتی احسان صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ کیا اسلام میں قبائل, طبقات, اونچ نیچ, بھید بھاؤ موجود ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے اور ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو. پوری انسانی برادری میں آپ نے انسانیت کی بنیاد پر مساوات کا پیغام دیا. ان ربکم واحد و ان اباکم واحد, تمہارا رب بھی ایک ہے, تمہارا باپ بھی ایک ہے. علماء کرام نے پیشے کی بنیاد پر, کسی کام کی بنیاد پر تفریق کبھی نہیں کی ہے. قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, ہر پیشے ہر طبقے میں علم اور علماء. جو بھی حلال کام کیا جا رہا ہے وہ ذلیل نہیں ہے, وہ گھٹیا نہیں ہے. مولانا ابو المعاصر حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے
پارچہ باف علماء، اور ان کی کتاب ہے مسئلہ کفاءت کی شرعی حیثیت. اس میں حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے واقعات کو نقل کیا. علماء تھے، لطاف تھے، علماء تھے بہت ہی جلیل القدر قسم کے، اور وہ پارچہ بافی کا کام کیا کرتے تھے. اور وہ دوسری کتاب میں مسئلہ کفاءت کی شرعی حیثیت میں انہوں نے ان واقعات کو نقل کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم نے اپنی لڑکیوں کا نکاح غلاموں سے کیا ہے. بہت بڑا باب ہے. اکرمہ غلام تھے، سالم مولا حذیفہ غلام تھے، عطاء ابن ابی رباح غلام تھے. اسلام نے بادشاہوں سے زیادہ ان کو عزت دی ہے. ہماری عملی زندگی سے اس بات کو ظاہر کرنا چاہیے، اور جو ہمارے رواج نے بھید بھاؤ طے کیا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. تہذیبی ہم آہنگی ضروری ہے. ہم نے سیدوں کے ساتھ بہت ظلم کیا. نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا ناجائز ہے. احناف کا مفتبی قول اور معمول بھی قول اسی طرح کا ہے. گنجائش بھی فقہ اکیڈمی نے دی ہے. نہ ہم ان کی بچیوں سے نکاح کرتے ہیں، نہ ہم ان کی مالی خدمت کرتے ہیں. کیا حق ادا کیا ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہونے کا. لیکن ہم ایک دارالاسلام میں نہیں ہے، دارالامن میں ہے، ایک دارالجمہوریہ میں ہے. ہم ایک دستور کے تحت یہاں پر جی رہے ہیں، اور 150 ہمارے علماء اکابر جو امبیڈکر کے ساتھ دستور کے بنانے میں شریک تھے، انہوں نے اپنی گہری سمجھ اور گہرے تجربے اور یہاں کی زمینی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کیا ہے کہ بہت ساری مراعات کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی، تعلیمی ریزرویشنز اور تحفظات کے لینے کے لیے ملک میں جو پیمانے بنائے گئے ہیں ان پیمانوں کے مطابق اپنے آپ کو درج کیا جانا چاہیے. آپ ضرور لکھوائے، اگر آپ کا شیخ سے تعلق ہے ضرور لکھوائے، بغیر کسی تحقیر اور بغیر کسی اعزاز، بغیر کسی چھوٹا سمجھے بڑے سمجھے کے. اگر آپ کا تعلق لداف سے ہے، اگر آپ کا تعلق کسی اور کمیونٹی سے ہے، قریشی سے ہے، مہتر سے ہے، ضرور ان توقعات کا اندراج ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں. حقیقت بیانی ہونی چاہیے. خلاف واقعہ بات لکھنے سے کافی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی، اور ہم پوری سچائی اور صداقت کے ساتھ پورے کالم اور پورے خانے ہم بھر نہیں پائیں گے. اور پھر حکومت وقت سے مطالبہ کیا گیا، اور بہت ضروری مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا آن لائن اندراج کرنے کا نظم ہونا چاہیے. اور ہماری تنظیمیں، ہماری جماعتیں اس کو ترجیحی کام سمجھ کر اپنے والنٹیئرز کو، اپنے رضاکار دوستوں کو، طلباء کو، ٹیچرز کو، مدرسے کے اساتذہ کو، مساجد کے خطباء، یہ تفصیلات جو اہل علم نے پیش کی ہے. مردم شماری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ فرمائی تو 600 مسلمان تھے. دوسری مرتبہ مردم شماری آپ نے فرمائی تو اس وقت 1100 سے زائد مسلمان تھے. سیرت میں اس کی اصل موجود ہے. خطباء کو چاہیے کہ اس سلگتے مسئلے پر پوری تیاری کر کے اس مواد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان جزئیات کی وضاحت جمعہ کی خطابت میں دے. اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے اور ہمارے ان ماہرین اور ہمارے ان فکرمند علماء کرام اور اکابر کی محنتوں کو قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. مفتی صاحب نے جو ہے مذہبی نقطہ نظر سے جو اس کی حیثیت ہے اس کو واضح کیا، اور یہ کہ جو غلط فہمی پھیل رہی ہے اس غلط فہمی کا ہم کیسے تدارک کریں گے، اور ماہرین نے جو ہے کیسے اس فارم کو بھرا جائے اس کی پوری تفصیل بتائی. گورنمنٹ سے ہم جو ایشوز جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہتے تھے اس کو یہاں پر رکھا گیا، اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سروے سے متعلق جو ضروری معلومات لوگوں کے پاس ہونی چاہیے الحمدللہ وہ آ چکی ہیں. ہمارے علماء کرام خاص طور سے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب اور دیگر اور بڑے علماء کرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس سے متعلق جو شکوک ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، طریقہ کار بھی لوگوں کے سامنے آ جائے،
اور یہ سروے جو ہے وہ ہر طبقے کے لیے اور ہر فرد کے لیے جو ہے وہ مفید بنے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ویسے تو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر ضرورت ہو تو مسلمان جو ہے وہ مسلمان کی بھی مدد کرے، اور جو دیگر کمیونٹیز ہیں اپنے ساتھ میں رہتے ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، ہم محسوس کرتے ہوں، تو سوشل ایکٹیوسٹ ہر طبقہ، ہر کمیونٹی اور ہر ایک کے لیے مدد کے لیے سامنے آئے۔ بہت بہت شکریہ۔